People are not fools. क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा? बताएंगे नहीं किसको डिलीट किया, क्यों किया. इट्स एब्सोल्यूट रबिश. ब्यूरोक्रेसी की नालायकी, करप्शन. हाउस नंबर 0 की बात करते हैं. Where is house number 000? Will the election commission take you and take me there? जिबरिश नाम थे कि JSW JW नाम है, सस्ती सस्ती सस्ती. किसको वो उल्लू बना रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है? हमको 30 साल लगे हैं, ये 3 महीने में सबको नए कार्ड बना के देंगे. क्या आपको लगता है कि ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है इन्फॉर्मेशन हाइड करने का? 80-90 लोग एक ही हाउस नंबर में रह रहे हैं. एक ही वोटर आईडी से अलग अलग पोलिंग बूथ्स में सेम वोटर रजिस्टर्ड है. फोटो की जगह कुत्ते का फोटो. जनता बेवकूफ तो नहीं है, जनता वांट्स टू नो. तो आपको लगता है कि इस तरह का कल्यूजन इज अ पॉसिबिलिटी? ये सुन के मुझे तकलीफ होती है जैसे आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं. अगर कोई आपके किसी सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है. आपके पीछे पड़ जाओ लट लेके, तो गलत बात है ना. दुनिया की मोस्ट पावरफुल इलेक्शन हैज द वीकेस्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट. अब जो इन्होंने कोलिजम बनाया, ये तो एक मौकरी कर दी. मैंने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड उसको सेंश्योर किया था. 4 मिनिस्टरों को मैंने चार्जशीट किया था, कांग्रेस के थे. आज आप किसी के चपरासी को एक्शन लेके दिखा दीजिए. हम तो लॉ मिनिस्टर को नहीं छोड़ा था. आपके दौरान कभी आपको क्या कॉल्स आती थी मिनिस्टर से, सोनिया गांधी से? एक दफा लालू जी का मेरे पास फोन आया. कैन ईवीएम्स बी हैक्ड? कौन करता था ईवीएम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन? बीजेपी. क्या एक सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है अब हमारे इलेक्शंस में? कैन मुस्लिम्स टेक ओवर हिंदूज? हम 5, हमारे 25. एक दिखा दो हिंदुस्तान में 4 बीवी और 25 बच्चे वाला. तो क्या आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम था? शादी ब्याह हो रहा है, खूब शराब चल रही है, बिरयानी कबाब चल रहा है, ना दूल्हा था ना दुल्हन थी. वीडेम इंस्टीट्यूट्स ऐसे कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है. हम दूसरे को गाली देंगे, इसने हमको ये बुरा कह दिया, ये तो गलत है ना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ग्रेट मैन, बट hello and welcome to the Peak Podcast, the only podcast for uncomfortable conversations and straight questions that no one else is asking. The podcast that begins where others go silent. And at a time where probably every reel, every headline is talking about the Election Commission, we have with us perhaps one of the most authoritative, one of the most credible voices on the Indian elections, on the Indian democracy, the 17th Chief Election Commissioner of India, Dr. S.Y. Qureshi. Thanks very much, sir, for being with us. At a time when you see that there is virtually a great decline of the credibility of the Election Commission, where we talk, where, Mode Chori has, really made headline, that the Election Commission has made headlines for all the wrong reasons. What is your first reaction? well, my initial reaction to vote story was that this is a strong political rhetoric, perhaps avoidable. But as it got louder and as we got more details, I realized that there was more to it than meets the eye. Initial reaction of Election Commission was of great hostility to the idea. They even demanded an apology or an affidavit from the leader of the opposition, which I criticized. That leader of opposition is not a man in the street. He is the leader of opposition of the biggest democracy in the world, and he speaks for millions of people. So if he is saying something, even if you feel it is absurd, you have no right to condemn him or criticize. You should inquire. Ask him what he is saying and say that we will inquire and we will get back to you, and this thing would have been all right. The kind of reaction that you saw, the angry chief election commissioner shouting at him, this is not the behavior or the voice of a chief election commissioner. That was immature of him. So at the same time, the fact that we read in the newspaper that election commission has filed an FIR against the illegal deletion of 6,000 voters, what does it show? That the election commission has come to the conclusion that there has been some illegal activity. Some people have intruded into electoral roll and illegally, which is why you filed an FIR. Although I do feel that FIR is one part, but is a later part. And on what basis did you go to the police when you realize that prima facie there is a case? Right. So what was that prima facie case? You should come out with it yourself. Because police, when it starts investigation, he will only come back to you.
Why you filed an FIR? Tell us which are the names which have been illegally deleted and who has deleted them. What are their phone numbers? What are their card numbers? All those details are with the Election Commission, and Election Commission passing the buck. Look, now we have filed an FIR. So while filing an FIR is on one hand is an admission that what he was saying is right, that some illegal activity has happened, and 6,000 votes by 100 people who were responsible for this, and the kind of, the first voter in the list is the complainant, and the media went to them and they say, "Okay, look, we don't even know. We don't even know what to do and how to do it." So therefore, this was not properly handled. It should have been properly inquired into, which probably surely Election Commission has quietly done. And they should have come out with the facts. They have the fact. What will FIR do? FIR should file a criminal case against the guys who have done this fraud. But what are the facts that they are only known to Election Commission? Right. And so now that you've mentioned this recent allegation that voters are being deleted, recently the Election Commission also started Aadhaar OTP verification. But that was started after Rahul Gandhi made allegations that voters are being deleted incorrectly. So don't you think that Aadhaar OTP verification should have existed earlier? Why did the Election Commission wait for these allegations to come up before getting that second level of check? You're right. If the Election Commission was sensitive to all the complaints, I have often said that anybody who points out a flaw in our system is not our enemy, he's our friend. Our constitutional mandate is to give you free and fair election, to give you a free and fair roles. And if somebody is pointing out the possibility of some mistake, some error, some fraud, it is incumbent on us to do a proper inquiry and go public. So instead of defending suddenly, and attacking the complainant, which creates the doubts and which is not the appropriate behavior at all. And they say that they're not giving them information. That the Karnataka police, they've written to them, but they're not giving them information. No, yeah, imagine the CID of Karnataka 17 times, they letter, and even the CID, they are not giving the information. What impression does it create? People are not fools. Everybody, you're reading the newspaper, you're watching the media, so am I. We are getting it all from the media. Now, 17 letters of CID on a criminal offense on which you have filed an FIR yourself, and you are not even responding. So, what conclusion will people draw from all Can that? there be a justified reason for hiding this information? Well, that is what people will say, that they are trying to hide. What else will be the reason? On the first communication, they should have supplied that information, but not giving it has obviously created doubts in the mind of everybody. Right. As we look at some of these allegations as well, there were glaring gaps, and we'll come to the specificities later. But when you see these gaps and these quote unquote bureaucratic errors, is this new to the electoral rules? As somebody who has been at the helm of the Election Commission, many officers will tell you that bureaucratic errors are inevitable at times. But the extent to which the leader of opposition has talked about, and whether it is mass deletions, alleged mass deletions, or fake voters, alleged fake voters, do you think that this is something that is a new phenomenon, or has this existed, or can this be justified in the name of bureaucratic errors? Well, it is not exactly a bureaucratic error, but this is a very old phenomenon. You're right. Electoral vote at any point in time is imperfect, can be imperfect, is imperfect, because it's a very dynamic document. While we are talking, how many people are dying and they should be deleted? How many people will migrate from one place to the other? They have to be deleted and re-registered at some other place. So, and it has gone to many courts many times. Once there was one case in West Bengal when 3.5 lakh voters were missing. So people went to court, and they say High Court, Calcutta High Court, that there's so much of missing voters, election should be postponed. The High Court not only refused to do that, they said, "Okay, look, right of 3.5 lakh voters on one hand and 3.5 crores who are already enrolled. So, we have to weigh one against the other." And therefore, they say, no, there may be omission.
many high courts have said that the electoral roll is always imperfect. It can never be perfect because there is no finality to it. And in fact, Professor Jagdeep Chokar, who unfortunately passed away recently, he was a good friend. And he was telling me just a couple of months ago that, Qureshi, you had made a statement when you were CEC, and I've been quoting it for the last 14 years. And what was that statement? I must have said at some time that while we have controlled violence in the election, all kinds of frauds we have taken control of, but electoral roll is our soft underbelly. So that is our weakness, and we have to do something about it. So he used to quote that as according to him. So it has been an old phenomenon, and So hence would you say a special intensive revision along with a summary revision, perhaps a solution to this, as the Election Commission says? well, I wrote a couple of articles on the subject that there was a time when every 5 years there used to be intensive revision. But you know what intensive revision implies? That the current electoral roll goes into the waste paper basket, and you have to start all over again. In 2003, when Bihar intensive roll was done, and 2004, the then Election Commission took a decision that we will in future not do any intensive roll for two reasons. One, that electoral rolls have been digitized already. And secondly, we also have voter identity card given to, therefore, impersonation and wrong voters coming, and even dead voter appearing for bogus voting. All those problems are in the left behind. Therefore, in future, we will only do summary revision. Yes. And what is summary revision? We will come to your house with the existing enrolled, and we'll say, Vedant, in your house we see that you have 4 voters. These are the names, and tell us whether this is correct or not. Has there been any change since last revision, which is 1 year ago? Every year it is done, door to door. So if there is any change, so please tell us. So, and they will also talk to the neighbors if there is any change that was done. So 99% roll was already accepted and perfect. In January of this year, elections were held on the basis of January 2025 roll. So you're essentially saying that is null and void. उसको null and void declare करना तो it is like not only Pandora's box बल्कि hornet's nest में हाथ डालने के बराबर है. ये आपने जिस चीज़ को हमने 99% तक पहुँचाने में 30 साल लगाए, आप उसको 3 महीने में कर देंगे तो आपके पास ज़रूर कोई जादू की छड़ी होगी. बहुत अच्छी बात है. मैं तो ज़्यादा इस पर इसलिए बोला नहीं कि मैं हम वेटिंग के जिस दिन ये आएगा ना तो पता लग जाएगा कि कितने डिलीट हुए और किस वजह से डिलीट हुए. अगर अच्छा हो गया तो वेल एंड गुड, वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन. और अगर गड़बड़ और बेईमानी वाले हुए तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा, उस पर भी उधम मचेगी. तो इसलिए ये इस करने की ज़रूरत मुझे तो समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था, हम लोग भी अपने ज़माने में बेवकूफ़ तो हम भी नहीं थे. आज के लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट, हम लोगों से, लेकिन हम भी तो बेवकूफ़ तो नहीं थे. हमारे ये डिसीजन था और बड़ा ठीक चल रहा है. 99% रोल तक आ गए थे. होता क्या है, जो ज़्यादातर ख़राबी होती है कि डेड वोटर्स का नाम कोई डिलीट कराने नहीं आता. मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है कि डेड वोटर कंटिन्यूज टू बी ऑन द रोल. एंड क्लेवर पीपल इन पॉलिटिक्स, दे मिसयूज दिस. दे नो कि सो एंड सो इज डेड, उसके नाम पे कोई वोटर खड़ा कर देंगे, वो जाके उस डेड वोटर के अगेंस्ट वोट दे के आ जाएगा. तो उसको हटाने के लिए कोई प्रोएक्टिव होता नहीं. तो हालांकि समरी रिविजन में व्हेन वी कम टू योर हाउसेज, यू शुड मेंशन दैट इफ नॉट अबाउट योर ओन house in the neighborhood who has died, so that we delete it. And in any case, no deletion can be done without a proper notice, individual notice given to you. And if you are not living there, you have gone to some other town, a notice will be pasted on your doors. So because proper notice, this is a legal requirement also. Courts have come down heavily when unilaterally thousands were deleted. Right. So, well, we recently made examples that one political leader wrote a letter to ERO
कि ये 1100 और 1700 और 17,000 इनको डिलीट कर दो, उन्होंने बड़े प्रॉम्प्टली उनको डिलीट कर दिया। सर सॉरी आपको काट रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी ये चीज़ कही कि जब राहुल गांधी ने कहा कि 6,000 या कुछ वोटर डिलीट करने का अटेम्प्ट किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये डिलीट करने की रिक्वेस्ट थी, अटेम्प्ट थी, कोई डिलीशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ये जो प्रोसेस है डिलीशन का कि इन ऑन ग्राउंड इंक्वायरी करे बगैर नाम डिलीट नहीं होगा, क्या ये फॉलो होता है? करेक्ट, नहीं ये होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो ये नालायकी है, और ये इसके रीज़न हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी की लेजीनेस, ब्यूरोक्रेसी की नालायकी, करप्शन, कुछ भी इसके रीज़न हो सकते हैं। लेकिन वॉट एवर द रीज़न, इलेक्टोरल रोल का परफेक्ट होना तो ज़रूरी है। उस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने जस्टिफाइड उसको प्योरीफाई करना उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज भी देखने होंगे कि वेदर इट्स ईजी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एंड क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा कि अब जो हम रोल जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, इनमें एक भी मिस्टेक नहीं है, अगर एक भी होगी तो हम हमारे खिलाफ सूट फाइल कर देना। क्या करेगी? नो वे। दूसरे से एफिडेविट मांगते हैं आप, आपके तो इतनी गलतियां हो सकती हैं, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया था कि जो डेड वोटर्स दिखाए गए थे, डिलीट हुए थे 65 लाख में से, उनमें से कई लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए कि साहब मुझे इन्होंने मुर्दा दिखाया, मैं तो यहाँ जिंदा आपके सामने हूँ। दैट इज हाउ सुप्रीम कोर्ट गॉट मोबिलाइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस, रिमेंबर। सर अभी जो हम बिहार एसआईआर की बात कर रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट मेंशन किया। कोर्ट के कहे बिना इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट ऑफ वोटर्स भी नहीं रिलीज़ की जिनको डिलीट किया और उनको क्यों डिलीट किया है। उन्होंने कहा इतने लाख डिलीट हो गए हैं, पर क्यों डिलीट हुए हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक सिटीज़न को बताने की, ये कह दिया था। कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तब आया। तो क्या आपको लगता है कि ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है इन्फॉर्मेशन हाइड करने का? सीसीटीवी फुटेज हम नहीं देंगे क्योंकि वो प्राइवेट है, औरतों की पिक्चर्स और वीडियोस क्या इलेक्शन कमीशन को रिलीज़ करनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया। ये हम डिलीशंस की लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि सिटीज़न का राइट नहीं है वो पूछना। और भी अभी जो हम कर्नाटका के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे उसमें भी अभी तक उन्होंने अलेजिडली डिटेल्स नहीं दी हैं। तो डू यू थिंक वॉज दिस ऑलवेज द केस दैट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू बी प्राइवेट और censored by the election commission? No way, no question. Nothing is private in the election commission. Everything has to be in public domain. If I delete your name and I don't tell you, ये कहना कि जी नहीं उनका राइट नहीं है, इससे बड़ा एब्सर्ड कोई बात नहीं हो सकती। 65 लाख डिलीट कर दिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसको डिलीट किया, क्यों किया। इट्स एब्सोल्यूट रबिश। एंड व्हाई डू वी वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू कम डाउन ऑन अस? ये तो हमारा अपना काम है, अल्टीमेटली तो किया ही ना। हाँ जी, ठीक ही होगा। तो ये क्या कुछ छुपाने को तो आपको नहीं था, तो आपने फिर फाइनली कर दिया। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस उसको पे ड्रैगिंग योर फीट कि नहीं बताएंगे, ये क्या नालायकी है। ये तो मेरे हिसाब से इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल कि नहीं बताएंगे। फिर बताया नहीं बताया, जब डंडा पड़ा तो बताया। हमारे वक्त में इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट हमको रेप्रिमांड करे वो नौबत ही हमने आने देते थे। ऐसे जैसे अपनी इज्जत अपने हाथ। वी वर ट्रांसपेरेंट। सुप्रीम कोर्ट तो उल्टा थपकी दिया करती थी कि भाई इलेक्शन कमीशन है तो बिल्कुल ठीक ही होगा। अब वो उनको वहाँ ऊपर से कोर्ट का डंडा चले, उसके बाद हम पब्लिक डोमेन में करें, इसकी क्या लॉजिक है मैं तो बता नहीं सकता भाई। जिन लोगों ने ऐसा किया वो उन्हीं से पूछा जाए। सर कुछ स्पेसिफिक्स पे आते हैं। जैसे कुछ एलिगेशंस जो थे, एक बड़ा एलिगेशन ये था कि पूरी लिस्ट्स में लिस्ट के करीब 50-60 पेजेस तक अगर आप देखेंगे किसी एक कंस्टिट्यूंसी की एक सेगमेंट का, तो उसमें हाउस नंबर 0 थे कई बहुत सारे वोटर्स के, उनके रिलेटिव के नाम कुछ जिब्रिश थी। लेकिन पहले हाउस नंबर 0 की बात करते हैं, क्योंकि उस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये नोशनल एड्रेसेस हम उनके लिए देते हैं जो होमलेस वोटर्स हैं और उनका भी राइट है कि वो आकर अपना वोट कास्ट करें, तो उनके लिए ये नोशनल एड्रेसेस होते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई ना ब्यूरोक्रेटिक एरर है, ना ही ये कोई ऐसा है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि हम नोशनल एड्रेस। Total rubbish, and I'll tell you why. If it is a notional address and Vedant is on the house number 00, and I want to question that Vedant is not a genuine voter, he's a bogus voter, let us go and verify. Where do I go to 000? Where is that house number 00 where I can come and cross check? And you know, Harsh Mandar, in our time, Harsh Mandar, who was working for street children and beggars, he came to election commission and he said so many beggars जो होमलेस हैं वो दुकान के पटरी पे के तख्ते पे सोते हैं। तो हमने कहा कि उनको वोट नहीं मिल रहा, तो हमने कहा ये तो बहुत गलती है, हम मानते हैं इसको, हमारी गलती है,
उनको दे आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम इनको वोटिंग राइट देंगे। और एड्रेस इनका क्या होगा, जिस दुकान के पटरे तख्ते पे ये सोते हैं उस दुकान का नंबर उनका एड्रेस होगा। अगर वो दुकान के सामने किसी पेड़ के नीचे सोते हैं तो पेड़ के नीचे कौन सी दुकान के सामने, तो दुकान का नंबर तो हमें मालूम है, ताकि हम वहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकें। ये 000 कहाँ से आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज हज़ारों वोट ऐसे हैं, अब इनको वेरीफाई, आई क्वेश्चन के दे आर ऑल बोगस वोटर्स, सो हाउ विल यू क्रॉस चेक, वेयर इज हाउस नंबर 000? विल द इलेक्शन कमीशन टेक यू एंड टेक मी देयर कि ये देखो ये 0 हाउस में जाके देखते हैं, कहाँ से मिलेगा? ये क्या नोशनल, किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कैसी बेवकूफ़ी की बात है ये। दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन एट ऑल। तो आपके हिसाब से गलत हुआ है या ये क्लरिकल एरर है? आप मतलब प्राइमा फेसी आपको क्या लगता है? क्लरिकल एरर होता अगर किसी क्लर्क ने क्या होता, लेकिन इसको तो हाईएस्ट लेवल पे इलेक्शन कमीशन डिफेंड कर रही है ना, कि जी ये रूल ही यही है, तरीका यही है, पहले से चल रहा है। कब से चल रहा है? हमारे वक्त में तो नहीं चल रहा था, हमें तो याद नहीं ये कब से रूल हुआ, ये पता चलना चाहिए। और अगर कभी भी से भी चल रहा था, अगर चूंकि ये एब्सर्ड है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आई वांट टू क्रॉस चेक 000 में ये फला आदमी बोगस है, हाउ विल आई गो टू दैट 000? यू टेल मी। तो ये कोई क्लियर नहीं है कि ये हाउस नंबर 0 का नया रूल आया कब से, ये आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता, ये इलेक्शन कमीशन को पता होगा, वो जरूर बताना चाहेंगे तो बताएं। और जब हम हाउस नंबर की बात कर रहे हैं सर, तो ये भी है कि 80-90 लोग एक ही हाउस नंबर में रह रहे हैं, ये भी एक इलेक्टोरल रूल्स में। देखिए हमारे वक्त में ये हमेशा कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी मकान में, आई थिंक द फिगर वाज 10, कि एक ही एड्रेस पे अगर 10 से ज़्यादा हैं, हालांकि 10 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 10 के ऊपर है तो हमारे कंप्यूटर उसको फ्लैग कर देगा कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, यहाँ जाके चेक करो। 80-80, 90-90, 100 लोग एक एड्रेस पे एक कमरे के मकान में रह रहे हैं और फिर भी वो इलेक्टोरल रोल चल रहा है और उसके बारे में कुछ नहीं एक्शन हो रहा। हमें तो नहीं सुनने को मिला कि क्या एक्शन हुआ, ऐसे कितने मकान पकड़े गए और कितने उनमें से वोटर डिलीट किए गए, फैक्ट बताओ। उसपे बोला कि एवरी सस्पिशियस एड्रेस पे जाना जरूरी हो जाता है। उस पे बोला कि बहुत लोग शिफ्ट हो जाते हैं पर चेंज नहीं करते, इसलिए तो एड्रेस फिर आप करो ना चेंज। आपने तो 65 लाख डिलीट किए, तो उसमें तो सारे डिलीट हो गए होंगे जो चेंज हो गए। आपने तो खुद ही क्लेम किया कि जी इसमें कुछ तो जो है मर चुके थे उनको निकाल दिया, जो चले गए थे उनको निकाल दिया, तो जो चले गए थे उनको निकाल दिया, तो ये फिर 80-90 कहाँ से आ गए? क्या कर रहे थे आप? ये भी मान लिया कि लोग मूव हुए या कुछ हुए, तो वो भी आपकी गलती है कि वो अभी तक क्यों है रूल्स। उसके बाद क्यों है? इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद अभी तक भी वो उस पे हैं, तो वो कैसे हैं? उसका तो जवाब चाहिए ना। एक वोटर ड्यूप्लिकेशन का भी सर बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने भी और हमने खुद भी, जब हमने इलेक्टोरल रोल्स में जाके देखा, हमने थोड़ा डिग डीप किया, तो हमने देखा कि एक ही एपिक नंबर से एक ही वोटर आईडी से अलग अलग पोलिंग बूथ्स में सेम वोटर रजिस्टर्ड है। और कई केसेस में ऐसा भी हमें खुद देखने को मिला कि सेम वोटर है पर अलग अलग एपिक नंबर से अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या ये भी एक कॉमन प्लेस, मतलब ये भी एक वो है? ये काफ़ी फ्रॉम टाइम टू टाइम दिखाई देता है कि एक तो डुप्लीकेट वोटर तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। और हमें भी 15 साल हो गए, उस वक्त भी हम लोग डी डुप्लीकेशन की एक्सरसाइज करते थे। उस वक्त हमारे इलेक्टोरल रोल बड़े डिसेंट्रलाइज थे ज़िला लेवल पे जी। हर कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहलाता है, वो उसको एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके डुप्लीकेट को पकड़ा करता था। लेकिन आप एक ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले में रजिस्टर हो सकते हैं, तो वो ज़िले का डेटाबेस तो उसको नहीं कैप्चर करेगा, आप तो दूसरे डेटाबेस में भी मौजूद हैं। फिर दूसरे अगर विद इन द स्टेट भी हम डेटाबेस बना लें तो वो किसी दूसरी स्टेट में हो सकता है, तो फिर नेशनल डेटाबेस ही पकड़ सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता नेशनल डेटाबेस इलेक्टोरल रोल का बनाया था इलेक्शन कमीशन ने कि कहीं भी हिंदुस्तान में आप हो और वो आप वहाँ पे हम पकड़ लेंगे। जब ये नंदन नीलेकनी आधार अथॉरिटी में आए थे, तो उस वक्त मैं CC था, वो मुझे मिलने आए समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो हमें बताने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। उस वक्त हमने बायोमेट्रिक की तरफ हम जा रहे थे और हमने गोवा में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पूरे स्टेट में हमने बायोमेट्रिक जमा किए थे। उसके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड रखो तो बहुत से लोग रिजेक्ट हो रहे थे, जबकि रिजेक्ट नहीं होने चाहिए थे। तो हमने उन पैरामीटर्स को बड़ा सिंपल करके कि वेदांत शुड भी वेदांत, बाकी चीज़ें इधर उधर की कुछ है
वी इग्नोर। जब ये आए तो इन्होंने कहा कि साहब हम तो पूरे हिंदुस्तान में फिंगरप्रिंट जमा कर रहे हैं, बायोमेट्रिक जमा कर रहे हैं। तो हमने कहा बजाय, हम पुअर देश हैं, हम भी जमा करें, आप भी करें, उसके बजाय हम आपका इंतज़ार करेंगे, हम बंद कर देते हैं गोवा के बाद, हम कहीं नहीं जमा करेंगे। जब आप डेटाबेस ये इस पे ले लेंगे तब हम इसको इंटीग्रेट करके डुप्लीकेट वोटर पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका आधार ही है। और जहाँ तक आधार बड़ा कंट्रोवर्शियल बीच बीच में हुआ, तो मैं तो आधार के फेवर में इसलिए रहा हूँ कि आधार से ही हम डुप्लीकेट को पकड़ सकते हैं। Exactly. क्योंकि यूनिक आईडी Unique नंबर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, वो तो आधार विल थ्रो इट अप, है ना। तो और पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल कर दिया था, बाद में इसको लीगल कर दिया। करोड़ों लोगों का डेटा इलेक्शन कमीशन से इंटीग्रेट हो गया था। लेकिन अब लेटेस्ट क्या है, वो तो मैं समझता हूँ 100% इंटीग्रेट करके डुप्लीकेट पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है। बाकी सारी चीज़ें जो की जा रही हैं, तो SIR और तमाम वगैरह, ये सब के बजाय वो आपके पास जब है। अब दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि 11 डॉक्यूमेंट उसमें दी गई कि आपने ये पेश कीजिए, आधार का कहीं नाम नहीं, हाँ। और तो और फोटो इलेक्टोरल रोल का कहीं नाम नहीं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, बल्कि उस इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन का फ़ायदा हो गया। वरना अगर आधार भी ना होता तो करोड़ों लोग एलिमिनेट हो जाते। कम से कम आधार की वजह से वो वापस आ गए लाइन में। तो इलेक्शन कमीशन की तो बल्कि फेस सेविंग करा दी उस आधार के आने से। ये उनको समझे कि एंटी इलेक्शन कमीशन ऑर्डर हुआ, वो तो इलेक्शन कमीशन के बचाव का ऑर्डर हो गया। दूसरी चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आती कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है इलेक्शन कमीशन ही का इशू, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और उसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने पहले दिन एक दफ़ा ज़रूर जिक्र किया था, ना किसी वकील ने, कि ना किसी लीडर ने, ना किसी ने बात ही नहीं की। क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में वोटर आईडी भी इंक्लूडेड नहीं थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वोटर आईडी को इंक्लूड न करना तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अजीब बात है। और मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसका नाम ही था एपिक ओमिशन और समथिंग लाइक दैट। तो उस पर मुझे एक हमारे एक डिप्लोमेट हु हैड बीन एम्बेसडर टू नेपाल, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा मिस्टर कुरैशी, व्हाट यू हैव मिस्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नेपाल इंडिया के बीच में ओपन बॉर्डर है। आप किसी भी आईडी कार्ड से चले जाते हैं तो पहले एक ज़माने में वो आधार, फ़ोटो कार्ड या पासपोर्ट लेके आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। मैं 20 बार नेपाल गया वोटर आईडी कार्ड से। जब आधार कंट्रोवर्शियल हुआ तो नेपाल गवर्नमेंट ने आधार को कह दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर नेपाल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम फ़ोटो आईडी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपकी इलेक्शन कमीशन खुद ही अपने ही कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम भी नहीं करेंगे, दैट मीन सिर्फ पासपोर्ट लेके आदमी जा सकेगा नेपाल और ये उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर, है ना। कितने गरीब लोग हैं, मुश्किल से 1% भी अगर पासपोर्ट होल्डर मिल जाए ना, तो अब देखिएगा कितने आधे % से ज़्यादा, तो कितनी लोगों के लिए हैरेसमेंट होगी। वो तो आना जाना उनका बंद हो जाएगा अगर नेपाल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर ले लिया। वो तो खुद अपनी प्रॉब्लम में उलझ गए, वरना शायद उन्होंने ये ऑर्डर ले भी लिया होता। वो वहाँ पे जो हालात हुए, तो इस वजह से तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये रीज़न मुझे कहीं सुना था, उन्होंने कहा कि जो वोटर रोल ही हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिए तो वोटर आईडी की भी वैलिडिटी, तो उसकी वैल्यू नहीं। अब जो है कि क्या नए वोटर रोल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे, हमको 30 साल लगे हैं घर घर पहुंचाने के लिए। अब भी 97% लोगों तक पहुंचा था 30 साल में। ये 3 महीने में सबको नए कार्ड बना के देंगे? क्या देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम। और ये जो भी अगर जादू करेंगे हमें बताएं तो सही। जनता बेवकूफ़ तो नहीं है, जनता वांट्स टू नो। मैं भी उस जनता का हिस्सा हूँ, मैं भी आई ऑल्सो वांट टू नो। जब हम टेक्निकल क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं तो एक और जो लैप्स दिखा कि जिबरिश नाम थे, कि JW नाम है, कि सस्ती किसी के पेरेंट का नाम था, और भी ऐसे रैंडम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या ये भी आपके टाइम पे आपने कभी देखा था कि किसी के पेरेंट्स के नाम नहीं है, या कोई ऑफन है, या ऐसे क्या इस तरह के नाम डाले जाते हैं वोटर रोल्स में? जी, देखिए हर किस्म की गलतियाँ तो इलेक्टोरल में फ्रॉम टाइम टू टाइम हमेशा देखी हैं। क्योंकि एक दफ़ा मध्य प्रदेश में हुआ कि फ़ोटो की जगह कुत्ते का फ़ोटो और 200 कार्ड इस टाइप के इशू हो गए। तो ऑब्वियसली समबडी आइदर डिड मिसचिफ और कभी कंप्यूटर एरर या वॉट एवर द रीज़न, दिस हैज़ टू बी करेक्टेड। तो ये अब इतनी इंटेंसिव एक्सरसाइज की प्योरीफाई करने के लिए, तो ये प्योर क्यों नहीं हुआ भाई, आप जवाब दें। तो इस तरह के एरर्स, मतलब ऐसे नाम होते थे नहीं, पहले? अगर जिबरिश को निकाल के बाहर फेंकना तो फिर आपका काम है ना।
वी वांट टू नो कि ऐसे कितने जिबरिश पाए गए, काफ़ी फिगर्स बीच बीच में आती रहती हैं, कितनी जिबरिश पाए गए और आपने उस पर क्या एक्शन लिया वो ज़रा बताइए तो सही। तो ये आना कॉमन है पर इनको निकालना इतना कॉमन भी नहीं है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरी ईयर दे आर अपडेटेड। हम आपके घर जब डोर टू डोर जाते हैं यही तो लेके जाते हैं, और उसी में कोई जिबरिश दिखाई दे जाएगा तो हम पूछेंगे कि भाई ये कौन साहब हैं आपके घर में इस नाम के, आप बताएंगे कि तो गलत लिखा हुआ है। और 3 फॉर्म लेके चलता है BLO जो आपके घर आएगा या आएगी, तो फॉर्म 6 अगर कोई नया वोटर आपके हो गया या 18 साल का हो गया है, अब उसको नया कार्ड बनाना है तो फॉर्म 6 भर दीजिए। फॉर्म 7 अगर आपने किसी को डिलीट कराना है कि किसी की डेथ हो गई है या कोई माइग्रेट कर गया है तो उसका नाम आप डिलीट करेंगे, आप नहीं कराएंगे तो आपका पड़ोसी ज़रूर कराता है। आपका पड़ोसी तो झूठा भी आपको भी करा देगा जो कि आप वहीं रहते हैं, ये नहीं, लेकिन फॉर्म 7 तो भरना होता है। और अगर कोई करेक्शन करानी है जिबरिश के, ये नाम ये नहीं ये है, वो फॉर्म 8 में आप करेक्शन कराते हैं कि भाई ये मेरे नाम में ये बाकी सब तो ठीक है, ये मिस्टेक है इसको ठीक कर दो, तो वो करेक्शन जो होती है वो फॉर्म 8 होती है। ये सब बड़ा सिंपल सा तरीका है। डोर टू डोर इसीलिए किया जाता है कि ये जिबरिश भी हट जाएँ, डुप्लीकेट भी, 70 वोटर भी, ये सारे पकड़ने के लिए तो डोर टू डोर जाते हैं, हर साल जाते हैं। सर तो इस सब का सार ये मतलब क्या है, एसेंस, यू नो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, ये डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, ये एक लैक्सिटी है इलेक्शन कमीशन की, या फिर द आर्ग्यूमेंट दैट द ऑपोजिशन इज मेकिंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ कोल्यूजन बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड द गवर्नमेंट। मतलब एसेंस तो बात का यही है। तो इस पर आप क्या समझते हो, क्योंकि CEC की बड़ी सेंसिटिव पोजीशन होती है कहीं ना कहीं, तो आपको लगता है कि इस तरह का कोल्यूजन इज़ अ पॉसिबिलिटी? नहीं, देखिए, द वेरी फैक्ट कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो ये सुन के भी दुख होता है कि इलेक्शन कमीशन पे कोल्यूजन का चार्ज लग जाए, इलेक्शन कमीशन पे नालायकी का चार्ज लग जाए। ये सुन के मुझे तकलीफ़ होती है, जैसे आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। मैंने भी 2-4 ईंटें उसमें लगाई हैं। एज ए सिटीज़न मुझे चिंता तो है ही, बट एज ए फॉर्मर CEC और भी चिंता है, क्योंकि मैंने भी उसमें 2-4 ईंटें लगाई थी, है ना। तो ये चीज़ें कि ये तो जो लोग कर रहे हैं वही जवाब दें कि ये किस वजह से ये चीज़ें हो पा रही हैं लार्ज स्केल। चुप्पी जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो ये तो जवाब दें इसमें कि ये क्यों है। वी वांट टू नो ऑल योर क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन हैज़ टू आंसर। मैं तो सिर्फ स्पेकुलेटिव ही बोल सकता हूँ, ओपिनियन बाहर रख के दे सकता हूँ। सारे सवाल तो उनके पास जवाब होने चाहिए। और उसका के लिए सबसे आसान तरीका है कि योर ओपननेस। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई आपके किसी सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा है। सिस्टम में कोई ख़राबी है तो उसको ठीक करना तो हमारा काम है। अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये गलती है तो उसको ठीक करना तो मेरी जिम्मेदारी, बजाय इसके कि मैं आपको अपना दुश्मन डिक्लेयर करके आपके पीछे पड़ जाऊँ लट लेके, तो गलत बात है ना। तो ओपननेस, दरवाज़ा खुला, हर चीज़ पे जवाब, हर कंप्लेंट का फॉर्मल एक्सप्लेनेशन। और ये भी होता है कि जी हमने तो कई बार जवाब दे दिया, ये नहीं है, बार बार कंप्लेंट होगी, बार बार जवाब देना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि जी मैंने जवाब 1942 में फला जुलाई को दे दिया था, नहीं, अरे पिछले हफ्ते भी दिया था, आज फिर कोई कंप्लेंट हुई है फिर जवाब दो। वही जवाब रिपीट करना है वो कर दो, लेकिन जवाब तो दो। सर सवाल और जवाब की जहाँ तक बात है, तो एक सवाल जो बार बार इलेक्शन कमीशन पर उठाया गया है 2024 के इलेक्शन कमीशन में, इनफैक्ट मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन के बाद ये सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन ने हेट स्पीचेस के जो एलिगेशंस लगाए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री पर हों, गृह मंत्री पर हों, हेट स्पीच का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है उसके इल्ज़ाम लगाए गए। मैंने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर का काम है, हाँ, इतना बड़ा इलेक्शन जब हम कंडक्ट कर रहे हैं तो इन छोटी चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हर बार ही इलेक्शन कमीशन पर बोला गया, पहले भी बोला गया है इलेक्शन कमीशन पर कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चाहे हेट स्पीच हो चाहे किसी और तरह का, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता इलेक्शन कमीशन। तो ये आपने कौन से चीफ इलेक्शन कमीशन पर मौजूदा थे? नहीं, इससे पहले वाले जो थे ना, ये अगर हेट स्पीच बाय ए टॉप लीडर, उसको मामूली सी बात कह के डिसमिस करना, ये तो बहुत कोई इंटेलिजेंट जवाब नहीं है, बहुत सीरियस जवाब है। हेट स्पीच बाय एनीवन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस।
ठीक है, उसको कि जी नहीं नहीं ये तो कोई ऑफेंस नहीं, हम हर छोटी मोटी बड़े टॉप लीडर की चीज़ को आप छोटा मोटा कहते हैं। ये ज़रूर है कि लाखों कंप्लेंट्स आती हैं मॉडल कोड वायलेशन की, लाखों आती हैं, लेकिन वो लाखों एक तरफ, लेकिन बड़े टॉप लीडर्स की के खिलाफ कंप्लेंट दूसरी तरफ, उसका वजन ही दूसरा है ना, इसलिए उसको ऐसे लाइटली डिसमिस कर लेना, मैं हैरान हूँ कि लोग इसको ऐसी इस किस्म के एक्सप्लेनेशन को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके वक्त पे भी इस तरह के एलिगेशंस थे कि हेट स्पीच के, या फिर कई बार जैसे आपके समय कुछ अपोजिशन लीडर्स मायावती ने बोला कि एक पर्टिकुलर पार्टी का, कांग्रेस का पक्ष लिया जा रहा है, तो उसके मतलब ऐसा क्या है, इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन कहीं ना कहीं बन गई कि एक्शन नहीं लेते हैं? नहीं, ये तो देखिए, एक तो मैंने अभी रिसेंटली कहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो उसका चीफ इनकम्बेंट है उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है। अगर भैया जिससे आप डील करें, आप किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी अगर नालायक है, आपका काम नहीं करता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नालायक है। अगर वह अंडर सेक्रेटरी बहुत अच्छा है, बड़ा हेल्पफुल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्पफुल है। तो जिससे आप डील कर रहे हैं, तो इस किस्म की पे ओपननेस को रखना, तो इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और दो और भी कमिश्नर हैं, उनको उन्हें अपने को सबऑर्डिनेट नहीं समझना चाहिए। दे आर इक्वल, तीनों को बराबर वोट है, उनको वो चुप बैठे रहे और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ करते चला जाए, ये भी बड़ी गलत बात है। फर्स्ट हम अमंग्स्ट भी इक्वल्स का सबसे जूनियर भी हम इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन हम तो खूब बोलते थे, बल्कि दूसरे दोनों कहते थे कि कुरैशी हम दोनों की तो आपस में बिल्कुल बनती नहीं, बिल्कुल हमारे डिफरेंट व्यूज़ हैं, तुम मॉडरेट करो। तो मैं मॉडरेट करता था। कितनी बार जजमेंट थी जो मेजॉरिटी वोट जो था उससे डिसीजन होते हैं, तो मैं जिस तरफ चला गया वही डिसीजन हो जाता था। तो तीनों इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा जिम्मेदारी का रोल है, और वो तीनों को ये समझना चाहिए, और हर चीज़ को कैजुअली डिसमिस कर देना कि हमारे बस का नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, लाइट है, ये तो नहीं, बड़ी क्या गंभीर है, क्या लाइट है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये ऐसे वो नहीं है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचने के लिए 100 अगर IAS होते हैं तो सिर्फ 5 पहुंचते हैं उस लेवल पे। उसमें से 3 आदमी इलेक्शन कमिश्नर में गए, वो तो ब्राइटेस्ट ऑफ द लॉट हैं। तो हर चीज़ का उनके पास अच्छा जवाब और हर चीज़ का अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। राइट सर, अभी जैसे वेदांत ने मेंशन किया कि जैसे भी ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस होती हैं, नोटिस भेज दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर उसके सिवा हम एक्शन नहीं देखते। अब अगर आपके टेन्योर की बात करें तो रिसेंटली बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने भी कहा कि आप एक मुस्लिम्स के CEC थे और आप भी UPA को उस टाइम फेवर करते थे, तो इसलिए अभी जो एलिगेशंस लग रही हैं कि ये इलेक्शन कमीशन हमको फेवर कर रही है, उसके काउंटर में ये बोला गया। तो क्या ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि अब हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? इस तरह की एलिगेशंस है जो आप पर लगती थी उस टाइम कि आप भी गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, और जो अब इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लग रही हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? नहीं देखिए, एक तो मुझ पर लगती थी, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि और अगर उसके बावजूद भी कोई लगाता है तो वो बेवकूफ़ है। मैंने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर साइन करता है, उसको सेंश्योर किया था। क्या हुआ था कि वो सलमान खुर्शीद, नाम भी मैं बता देता हूँ, वो उनकी बीवी इलेक्शन लड़ रही थी फर्रुखाबाद से। उन्होंने इस इलेक्शन स्पीच में कहा कि मैं माइनॉरिटी का कोटा 4.5% से बढ़ा के 9% हम कर देंगे हमारी पार्टी। तो बीजेपी उन्होंने कंप्लेंट की कि साहब ये तो मॉडल कोड की वायलेशन है। हमने उनको नोटिस दिया, दोनों तरफ से 5 दिन तक हियरिंग चली थी हमारी अदालत में, और 10-10 टॉप लॉयर्स ऑफ बोथ साइड उन्होंने आके अपना केस पेश किया। हमने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को सेंश्योर किया, जो उस समय कांग्रेस का था, जिस पार्टी ने मुझको अपॉइंट किया था। हमने तो लॉ मिनिस्टर को नहीं छोड़ा। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि जी हम प्रो कांग्रेस थे, तो बड़ा गधा है। 4 मिनिस्टरों को मैंने चार्जशीट किया था, कांग्रेस के थे, कांग्रेस में। तो वो बिल्कुल या तो अंधा है या इडियट है, जो अगर उसके बावजूद भी ये कमेंट करता है, करके दिखाए इसको मुकाबले का कोई केस मुझे निकाल के ढूंढ के बता दीजिए। हमने तो नहीं छोड़ा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इंडिपेंडेंट बनाया है। अपॉइंटमेंट किसी ने की हो, लेकिन एक दफ़ा आप अपॉइंट हो जाएं तो आपका नाता गवर्नमेंट से टूट जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है। ठीक है, अब आपको गवर्नमेंट कोई तो आदेश नहीं दे सकती, और आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ये खुदा को हाजिर नाजिर जाके जान के आपने फैसले लेने होते हैं,
और जनता का विश्वास के लिए। इसके बाद भी अगर कोई कहता है, मुझे तो नहीं मालूम, ऐसे ज़्यादा किसी ने कहा नहीं था, इसके बाद तो सबके मुंह वैसे ही बंद हो गए थे। आज आप किसी के चपरासी को एक्शन लेके दिखा दीजिए, हम तो लॉ मिनिस्टर को नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्होंने, अब बताइए इतना। अच्छा, मैंने एक और चीज़ आजकल में किसी, आई थिंक वो इंडियन एक्सप्रेस के जो थे ना आइडियाज़ एक्सचेंज में, उसमें कोई जिक्र आया था। मैंने कहा था कि मेरी पॉलिसी थी कि ऑपोजिशन में, आई वॉज वेरी प्रो ऑपोजिशन, कि ऑपोजिशन इज़ दी अंडरडॉग। वो कमज़ोर लोग हैं, वो भी पावर में रहे होंगे लेकिन वो कमज़ोर हैं, उनको सपोर्ट और सिंपैथी और हैंड होल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सरकार के तो हाथ बड़े लंबे हैं, जो चाहे करा लेती है, करा सकती है, इसलिए इनको के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। उस वक्त ऑपोजिशन मेरे वक्त में कौन थी? बीजेपी। कौन अंडरडॉग था? बीजेपी। किसके लिए मैं सिंपैथेटिक और सपोर्टर था? बीजेपी। ये जिन साहब का आपने नाम लिया, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी मुस्लिम कमिश्नर ने और अरुण जेटली साहब ने, मेरी ये किताब आपके हाथ में है अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, ये आप उनके जेटली साहब के कमेंट हो सके तो अभी पढ़ के सुनाई दीजिए। जी, पहली Mr. है, Arun Jaitley ने लिखा है, this book is based on the wisdom and experiences of one of India's most mature and credible chief election commissioners. It is insightful lessons for those who handle elections in democracies the world over. देखिए ये बीजेपी के टॉप लीडर, लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, ये अगर मेरे बारे में लिख रहे हैं तो ये निशिकांत दुबे जी है, ये क्या हैसियत रखते हैं? ये तो बहुत छोटे आदमी हैं। ये तो अरुण जेटली की कमेंट है। आगे एक और पेज पे मुरली मनोहर जोशी जी की कमेंट है। जी। क्योंकि बिकॉज मेरी पॉलिसी ये थी और आज भी है, और मैं रिकमेंड भी ये करूँगा कि देखिए, ऑपोजिशन इज दी अंडरडॉग, यू हैव टू बी विद दी अंडरडॉग। जी, और आपने अपॉइंटमेंट की बात करी सर, ऑन मोर देन वन ओकेजन यू हैव सेड कि क्वेश्चनिंग द अपॉइंटमेंट and basis the fact that the government has appointed, उस बेसिस पर इलेक्शन कमिश्नर के बायस को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गलत है। आपने बोला कि आप लोग भी उसी अपॉइंटमेंट के थ्रू आए हैं, आपको भी उस समय तो एलओपी भी नहीं था कमेटी में, अब एलओपी है। तो आपको लगता है कि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, इज़ इट फेयर, और क्या उससे ये कहीं ना कहीं डिटर्मिन होता है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स बायस्ड हैं या अनबायस्ड है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपका सरकार कर रही है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कोई 65-70 साल तक तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे अपॉइंट कर देती थी, और वो सारे के सारे, किसी ने इलेक्शन कमीशन की नाक नहीं कटने दी, उन्होंने उसकी डिग्निटी को अपहोल्ड किया, सारे न्यूट्रल साबित हुए, सबकी एक से एक अच्छी रेपुटेशन। एक साहब ज़रूर थे जिन पे लोगों ने उंगली उठाई कि जी कांग्रेस के बहुत करीब है, लेकिन मैंने तो अपने रिजीम में उनको कोई प्रो कांग्रेस करते नहीं देखा, ना मैं अगर करने की कोशिश भी करते तो ना मैं होने देता। मैं भी कांग्रेस का अपॉइंटी था, मैंने आपको अपनी 4 मिसालें दे दी, निकाल के दिखा दिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोटेक्शन दी है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं ना खराबी, कि कितना भी हम फेयर हो लें, लेकिन लोगों उंगली उठाने वाले या फजूल बात करने वालों का तो मुँह नहीं कोई बंद कर सकता। उसको बंद करने के लिए सिर्फ इस उम्मीद में कि होपफुली सब लोग ठीक बिहेव करेंगे, होप इज़ नॉट ए स्ट्रेटजी, देयर हैज़ टू बी सिस्टमिक कंट्रोल ओवर इट। और सिस्टमिक क्या है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम शुड बी बाई पार्टीजन। यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली गई, और उन्होंने कहा कि साहब आर्टिकल 327 में ही लिखा था कि आप ये इस पर लॉ बनाएंगे। लॉ तो आपने 70 साल में नहीं बनाया, लॉ बनाइए। और जब तक लॉ नहीं बनता, ये जो कोलिजियम हमारा होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, ये अपॉइंटमेंट करेगा। सरकार लॉ ले आए, उसमें ये नहीं कहा था कि लॉ में ज़रूर डालिए, ये नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन क्वेश्चन क्या था, जो जिस वजह से ये पिटिशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कि बाई पार्टीजन सिस्टम होना चाहिए, कि ताकि अपोजिशन और हर पार्टी को ये विश्वास हो, यकीन हो कि ये आदमी फेयर है। तो अब जो इन्होंने कोलिजियम बनाया, ये तो बिल्कुल एक मौकरी कर दी कि प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। आप ही बताइए, ये 2-1 जो जजमेंट होगी, ये क्या फेयर मानी जाएगी? ये तो इंटेंशन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में वैसे बाय द वे अभी केस चल रहा है, लास्ट वर्ड क्या होगा अभी वी डोंट नो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्लो चलती है, किस चीज़ का इंतज़ार है आई डोंट नो, उन्हें जल्दी करना चाहिए इस पे फैसला। तो क्या आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से पहले भी जो सिस्टम था ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसीज, वो भी एक तरह से अनफेयर था? कि अभी तो एक एलओपी तो है, पहले तो वो भी नहीं थे। करेक्ट, बिल्कुल वो अनफेयर था।
और मैंने खुद कहा है, जब मैं उस कुर्सी पे बैठा था, मैं खुद उसका बेनिफिशियरी था, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। लेकिन उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, दुनिया के मोस्ट पावरफुल इलेक्शन हैज़ द वीकेस्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। क्योंकि मैं भी उससे खुद, बल्कि मुझे करण थापड़ का एक इंटरव्यू था, गूगल करके आप निकालेंगे तो उसमें उन्होंने फिर को, चूँकि जिस तरह उनका अंदाज़ है वो दोबारा रिपीट करके पूछते हैं, तो उन्होंने कहा यू मीन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी आपका अपॉइंटमेंट साइन की होती तो आप ज़्यादा खुश होते? मैंने कहा डेफिनेटली। फिर उन्होंने रिपीट किया, यानी सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो साइन करती। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि परसेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन ये होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों ने किसी को एक्सेप्ट किया है तो ये शख्स ठीक ही होगा, है ना। तो इसलिए परसेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लाइटली डिसमिस नहीं कर सकते। सर, आपकी बातों से एक चीज़ जो ये क्लियर हो रहा है कि एक जो उस कुर्सी पे बैठा है, सीसी कुर्सी पे, उसकी कॉन्शियंस बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि वो उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। तो क्या आप, क्योंकि इतने साल आप सर्विस में रहे, जो करंट सीईसी हैं, क्योंकि आपने परसेप्शंस की बात करी, उनका एक ये परसेप्शन बन गया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ द डे से क्लोज हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे के कहने पे चलते हैं। तो आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपकी इवैल्यूएशन में एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट योरसेल्फ? नहीं, मैं उन पे बिल्कुल करंट इलेक्शन कमीशन पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उनकी जो एक्शन है उस पर मैंने इतनी देर में कई कमेंट आई हैं, लेकिन बहुत काबिल आदमी है, टॉपर थे वो आईआईटी कानपुर के और यूपी बोर्ड के, उनके लाइफ में बड़ी अचीवमेंट थे। तो अगर परसेप्शन उनके ख़िलाफ़ चल रहा है तो ये तो खुद उन्हीं को सोचना चाहिए, उनको वो ज़रूर अवेयर होंगे, नहीं है तो उनको अवेयर होना चाहिए उसको, और उसका उनके पास जवाब होना चाहिए कि ये परसेप्शन क्यों बना, है ना। परसेप्शन खामखाई तो नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसका जवाब भी होता है, देना चाहिए। सर, एक वर्ड पिक करना चाहूँगी जो आपने पिछले अपने आंसर में बोला कि जब सीसी बन जाते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाती है आपके अपॉइंटी से, जो कि सरकार थी पहले भी और अभी भी एक तरह से है। पर एक ये क्वेश्चन मेरे जैसे आम वोटर्स हम सबके दिमाग में बहुत रहता है कि फिर भी सरकारों से कोशिश तो रहती होगी इन्फ्लुएंस करने की, ये एक सवाल होता है हमारे दिमाग में। तो हम करंट सीईसी की बात इसमें नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि आपके दौरान कभी आपको क्या कॉल्स आती थी मिनिस्टर से या सोनिया गांधी से या कोई भी सीनियर कांग्रेस लीडर्स से? हम क्या 6 साल रहे, हमें तो एक बार भी सोनिया गांधी की कॉल नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। और वो अच्छा, सरकार भी ये देखती है कि किससे बात कर रहे हैं, ज़रा सा भी उनको ना, वो भी उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ते पहले कुरे देंगे, दे विल टेस्ट द वाटर, और उनको लगा कि ये आदमी तो दब्बू है, ये तो दब जाएगा, तो फिर खूब दबा लेंगे। और अगर पता लगे ये तो बड़ा खड़ा आदमी है, ये तो पीछे पड़ जाएगा, तो फिर नीचे जो करेंगे। हमारे पास में तो नहीं आई, पर मैंने तो आपको सबूत दे दिए। लॉ मिनिस्टर और 4 मिनिस्टरों को चार्जशीट करना, उसी सरकार ने जिसको हमको लगा है कि ये इससे बड़ा क्या सबूत तो चाहिए आपके साथ टेस्ट द वाटर्स करने की कोशिश की गई? नहीं, वो जिसको लोग कहते हैं ना दबाव, देखिए हर पार्टी डेलीगेशन में आती है, हाँ। तो रूलिंग पार्टी भी डेलीगेशन में आती है, उसको आप दबाव मान लीजिए तो वो दबाव है, अदरवाइज वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं, अपील लेके आ रहे हैं, तो वो दूसरी बात है। उसको आप दबाव में आ जाएं या उस तरह, पार्टी डेलीगेशन कांग्रेस के भी आते थे, आए दिन आते थे, ऑपोजिशन के भी खूब आते थे, और जैसे मैंने कहा हमारे दरवाजे ऑपोजिशन के लिए ज़्यादा खुले रहते थे। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, ये सिर्फ इफेक्ट के लिए नहीं कह रहा, कि देखिए उनका कॉन्फिडेंस, उनका फेथ हमारे सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा लालू जी का मेरे पास फ़ोन आया रात को 10:30 बजे, अगले दिन काउंटिंग थी। उन्होंने कहा कि कुरैशी जी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बैंकिंग स्टाफ को काउंटिंग ड्यूटी पर लगा दीजिए। मैंने कहा लालू जी 10:30 बज गए, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है, सारे ड्यूटी लग चुकी हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूँ। लेकिन दिल में मैंने ठानी कि कुछ भी करना पड़े मैं ज़रूर इनकी इस बात को पूरा करूँगा। क्यों चाहते थे वो? नहीं, उनको लगता होगा कि वो बैंकिंग स्टाफ ज़रा ज़्यादा डिपेंडेबल है, दूसरों पे उनको ट्रस्ट कम होगा, उनका कुछ तजर्बा रहा होगा पुराना। तो उस वक्त लालू जी ऑपोजिशन में थे? ऑपोजिशन में थे। तो मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बिहार के मैंने कहा कि भाई देखो ये करना है, डू व्हाट यू लाइक, मूव हेवन एंड अर्थ, मुझे यही चीज़ चाहिए कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बैंकिंग स्टाफ हो। तो और उसके फ़ायदा देखिए, अगले दिन रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है, वो हार गए बुरी तरह, लेकिन
उस हार के लिए वो इलेक्शन कमीशन को अब जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि इलेक्शन कमीशन ने तो पिछली रात तक आपको सपोर्ट किया, जो आपने मांगा आपने उनको दिया है। उनका फ़ोन, हाँ कुरैशी जी मेरे उसमें तो लाखों लोग आते थे और लोग कह रहे हैं, इससे पहले कि वो बात कंप्लीट करते मैंने कहा लोग अगर ईवीएम के लिए कह रहे हैं तो लालू जी ऐसी गलती ना कीजिएगा, हार तो आप गए हैं, ईवीएम का नाम लेंगे उसको ब्लेम करेंगे तो लोग मजाक और उड़ाएंगे। चूँकि उनका ट्रस्ट मुझे हासिल था और प्रीवियस नाइट ही मैंने और उसको कंफर्म किया था, तो उन्होंने उसके बाद एक लफ्ज़ ईवीएम पे न मेरे सामने न बाहर या पीछे पे वो नहीं लिया, क्योंकि इसलिए अपोजिशन का ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन में सिस्टम में होना। और एक चीज़ मैंने और भी बताना चाहूँगा कि अगर जनता हमको ट्रस्ट करती है तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। हम भी इंसान हैं, गलती में हो सकती है, एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकती है, लेकिन लोग उसको माफ़ कर दिया करते थे कि भाई ये लोग हैं ठीक, ये बेईमानी इनका मकसद नहीं है, ये किसी पक्षपात नहीं करते, अगर ऐसी हुआ तो कोई लोअर लेवल पे किसी लेवल पे कोई गलती हो गई होगी माफ़ करते। जहाँ ट्रस्ट उठ जाता है तो वो आदमी अगर ठीक भी काम कर रहा होता है उसकी हर चीज़ सस्पिशियस हो जाती है, हर एक को शुबे की निगाह से देखा जाता है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इस तरह से। इसलिए लोगों को के ट्रस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसको बिल्कुल ठेस ना लगने दें। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज का जो लैक ऑफ ट्रस्ट और फेथ होता है ना, वो तो फिर भी आसान है। अब जैसे ईवीएम पे बड़ा क्वेश्चन होता था, कौन करता था ईवीएम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? बीजेपी। उन्होंने तो एक किताब भी लिख डाली थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ठीक है। तो जब मैं सीईसी बना मैंने फ़ौरन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बिकॉज आई बिलीव्ड इन कंसेंसस। बजाय इसके नहीं ईवीएम ठीक है, हम नहीं बात करते ना, दिस वाज नॉट माय स्टाइल। जैसे मैंने कहा ना कि ये चीफ इनकम्बेंट का स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, उसके लीडर थे चंद्रबाबू नायडू जी। वो मैंने हैरान हुआ, मैंने कहा चंद्रबाबू जी आप तो टेक्नोलॉजी का आइकॉन है एंड यू आर लीडिंग एंटी टेक्नोलॉजी द मूवमेंट इन दिस डेलीगेशन। फिर हमने पूछा और चौटाला साहब से, लालू जी से, भाई आपका क्या स्टैंड है? कह लगे जो ये कह रहे हैं, तो एवरीबडी वाज फॉलोइंग हिम। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो अब मेरे चैलेंज ये है कि चंद्रबाबू जी कि आपको मैं इस कमरे से जब भी जाने दूंगा जब आप मेरे ईवीएम के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। उसके लिए मुझे आपका फेथ हासिल करना है, बताइए क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड, रिजल्ट कैन बी मैनिपुलेटेड। मैं ना आगे हो सकते हैं, ना हो पीछे हुए, ना आगे हुए, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं? कह लेंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि जब आप वोट बटन दबाते हैं तो मशीन में गया तो ठीक जगह गया कि नहीं गया ये दिखाई नहीं देता। क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बड़ा रीजनेबल आइडिया। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया कि यस वी विल डू इट। उसी दिन हमने दोनों कंपनियों को ऑर्डर कर दिया कि मुझे डिज़ाइन डेवलप करो, वीवीपैट बना के लाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ईवीएम के पक्ष में बोला था तो वीवीपैट का मेंशन उन्होंने भी किया था। आपने ईवीएम के सपोर्ट में बहुत स्ट्रांगली बोला है जब आप सीईसी भी थे, आज तक बोलते आए हैं। तो कि एक आम वोटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैन ईवीएम्स बी हैक्ड? बिकॉज कई बार ये बोला जाता है कि भाई कांग्रेस या कोई पार्टी जब हारती है तब बोलती है ईवीएम हैक हो जाए। नहीं, वो तो जब जीतने के बाद तो कोई कौन नहीं बोलेगा, वाला ही बोलता है ना। इसमें मैं देखिए ईवीएम तो आज भी मैं कहता हूँ, इट कैन नॉट बी हैक्ड। हालांकि आजकल तो बहुत कुछ होने लग गया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। अब जो इशू है वीवीपैट पे है। वीवीपैट में ये इशू चल रहा है कि कितनी मशीनें गिनी जाएँ। मेरा अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मैं ऑर्डर दिया था कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी अगर है तो हर विधानसभा क्षेत्र के 5 मशीनों को रैंडमली उठा के टेस्ट कर लीजिए। मेरा उस पर कहना था कि रैंडमली ना टेस्ट कीजिए, पर्पसिवली कीजिए, यानी जिस पे कंप्लेंट आया सिर्फ उसको कीजिए। और मैं किसी क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान पूरा क्रिकेट फ़ैन है कि जो थर्ड अंपायर को जाता है फैसला करने को, वो डाउटफुल कैसी थी तो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू था या नहीं था, ये तो नहीं रैंडमली 5% ऊपर जाते हैं। जो जिस पे मुझे शुबा होगा कि एलबीडब्ल्यू नहीं है तभी ऊपर जाता है और फिर उस पर फैसला। तो मेरा ये एक रिकमेंडेशन है कि 2 टॉप जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि छोटे मोटे कैंडिडेट जिनके 500 वोट हैं उनकी तो कोई रिजल्ट नहीं चेंज होने वाला। रनर अप 1 और रनर अप 2 उन पर ही फ़र्क पड़ता है। उनको आप कह दीजिए 2-2 मशीनें चुन लीजिए, तो 5 के बजाय 4 रह गई, लेकिन वो मशीनें वो चुनेंगे जिस पे उनको शुबा है, शक है।
तो उससे की वजह से उसे ट्रस्ट पैदा हो जाएगा। फिर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक दफ़ा 100% भी चेक करने पड़े वो भी कर लीजिए। लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का विश्वास। आज भी मैं ट्वीट करता हूँ किसी म्यूजिशियन पे, किसी थिएटर, उस पर फट से 2 ट्रोल मुझको ईवीएम के नाम से गाली दे देते हैं। तो जनता का विश्वास ईवीएम में जो टूटा हुआ है उसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लेटेस्ट बुक है, हम बात कर रहे थे, शायद आपकी सेवेंथ बुक है, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। सर, साउथ एशिया में बहुत दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं अभी, एंड इट्स अ वेरी वेल टाइम्ड बुक मैं कहूँगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि अभी भी सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत रोबस्ट है अभी भी। अगर आप नेपाल को देख लें, नेपाल में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तो उस हिसाब से इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत रोबस्ट है। वी स्टिल स्टैंड एज अ लीडर एटलीस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने किताब लिखी क्यों, डेमोक्रेसी हार्टलैंड कहाँ से नाम आया। हाँ, वो ये कि मैं एक किंग्स कॉलेज लंदन में मैं 10 साल पहले फिक्की के फेलोशिप पे गया, और उन्होंने कहा कि किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कीजिए, एक पेपर लिखिए और 2-3 पब्लिक लेक्चर होंगे। तो मैंने ये सुना है डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल चैलेंजेस इन साउथ एशिया। तो उसमें मुझे इतना मसाला दिखा कि साउथ एशिया की इम्पोर्टेंस जो लोगों को नहीं अंदाज़ा। दुनिया में 203 मुल्क हैं, साउथ एशिया में सिर्फ 8 हैं। इन 8 में 25%, 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली इन 8 कंट्रीज, एंड 40% ऑफ वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी लिव्स इन दीज 8 कंट्रीज। तो कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस इनको दी नहीं जाती। ना कोई यूएन एजेंसीज वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, ना कोई बायलैटरल डोनर्स हैं, ये वो है, परवाह नहीं करते। मैं देखा अमेरिका में, इंग्लैंड में, जगह जगह मैं गया हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में साउथ एशिया डिवीज़न होती है। दूसरी चीज़ कि उस साउथ एशिया डिवीज़न में 99% इंडिया की बात होती है। तो मैं दूसरी चीज़ जो मैंने इस पर आर्ग्यू की है कि साउथ एशिया इज़ मोर देन जस्ट इंडिया। इंडिया इज़ श्योरली द बिगेस्ट, नो डाउट, लेकिन बाकी की 7 कंट्रीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते। और बल्कि इसमें मैंने इस किताब में इतनी चीज़ें लिखी हैं कि हम इनसे छोटे छोटे मुल्क हैं, उन कई चीज़ों में हमसे सुपीरियर हैं, वो उनसे हम सीख सकते हैं। हम अब इसी एरोगेंस में कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है, इसीलिए हमारे नेबरहुड हमको कि साहब ये इंडिया अपने को बिग ब्रदर समझता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब हम बिग तो हैं, ये तो हमारा कसूर नहीं है कि हम बिग हैं, लेकिन हमें एल्डर ब्रदर होना चाहिए, ना कि बिग ब्रदर। तो उसके लिए हमें इनकी हैंड होल्डिंग, और मैंने बल्कि एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था इलेक्शन कमीशन में, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIID है। बड़ी मुखालफत की थी उस वक्त की लॉ मिनिस्ट्री ने, बहुत मुखालफत की, ये कुरैशी क्यों बना रहा है, क्या बना रहा है। आपको जान के खुशी होगी और हैरानी होगी, दुनिया के 143 डेमोक्रेसीज़ के इलेक्शन कमिश्नर हमसे पिछले 15 साल में ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। लाइन हम विश्व गुरु हुए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। हिंदुस्तान विश्व गुरु तो बनने के अभी कोशिश ही कर रहा है, इसमें तो हम प्रूवन विश्व गुरु हैं। 143 कंट्रीज़ के इलेक्शन कमिश्नर और टॉप इलेक्शन मैनेजमेंट हमसे ट्रेनिंग लेके गया है पिछले 12-13 साल के। 2011 में बनाई गई थी ये, जब से अब तक आप गिन लीजिए कितने साल हुए, तो कुछ न कुछ तो अच्छा काम हुआ होगा। सर, यही आपने अपनी ये दूसरी बुक में लिखा है ना, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। इसमें आपने लिखा है कि कैसे हिलरी क्लिंटन ने एक्सप्लेन किया था कि इंडियाज इलेक्शंस आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली, जिससे पूरे देश की डेमोक्रेसीज को सीखना चाहिए। अब मैंने इस किताब का नाम अगर आप देखेंगे ना, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। अब बहुत से लोग मेरी इस किताब का मजाक उड़ाने लगे हैं कि साहब आप जिसको अनडॉक्यूमेंटेड वंडर कहते थे, उसमें तो देखिए ये खराबियाँ निकल के आ रही हैं, है ना। तो हमें वो अनडॉक्यूमेंटेड वंडर एक दफ़ा पुरानी ग्लोरी पे हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते। हमेशा ये एक पौधा है, उसमें हम जब तक उसको पानी नहीं डालेंगे, टाइम से उसके खाद नहीं डालेंगे, तो वो तो मुरझा जाएगा। तो इसलिए इसका 7वां एडिशन ये आया है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। 3 तो दुनिया के कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स ने इसको इंडोर्स किया है, इस किताब को, कि इसलिए क्योंकि इसमें वाकई जो इंडिया का इलेक्शन है, इट्स ए मार्वल, इट्स ए वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और उसको मैंने इस किताब में कैप्चर किया है। तो जब आपने ये किताब लिखी, तब से लेकर अब तक क्या वो चेंज हुआ है इंडियन इलेक्शंस के परसेप्शन पर? क्या एक सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है अब हमारे इलेक्शंस में? देखिए, ये तो हम पूरे इस प्रोग्राम में यही तो हमने डिस्कस किया कि ट्रस्ट डेफिसिट तो है। उसको हम अंडर द कारपेट कर नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब लोग ट्रस्ट करते हैं, तो दैट विल बी फुलिश एंड सिली।
सबको मालूम है हम अंधे थोड़ी हैं, लोग अंधे थोड़ी हैं, सबको दिखाई दे रहा है ट्रस्ट डेफिसिट है। सबसे अच्छा किसी भी बीमारी का सबसे पहला इलाज होता है एडमिशन, एक्नॉलेजमेंट, है ना। कितने दिन पहले होता था एक ज़माने में ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम, मेरे बच्चा नहीं ड्रग नहीं ले सकता, मेरा दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले यू हैव टू कम आउट ऑफ द डिनायल मोड कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अरे कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करो और उसके ऊपर लोगों को जो एक्सेप्टेबल जो जवाब हो वो जवाब दो, एक्सप्लेनेशन दो, ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी रेमेडी हो सकती है। क्या आप कहेंगे ये किताब उन सब लोगों को पढ़नी चाहिए जो जानना चाहें कि इंडियन इलेक्शंस की क्या रेपुटेशन थी और किस तरह से वो इन सब एलिगेशन से फ्री थे पहले? बिल्कुल, ये किताब को तो पढ़ना सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम को समझने के लिए ये है। बल्कि मुझे बड़ी खुशी ये बताते हैं कि शुरू में प्रधानमंत्री जी ने मेरे पास उनका कोई अंग्रेज़ बायोग्राफर आया था जो उनकी बायोग्राफी लिख रहा था, तो उनके स्टाफ से मुझे फ़ोन आया कि पीएम ने कहा है कि अगर इंडियन इलेक्शन को समझना है तो कुरैशी के पास जाओ। सर आपने रेपुटेशन की बात करी, आपने डेमोक्रेसीज़ की बात करी और आपकी जो बुक है डेमोक्रेसीज़ हार्टलैंड, इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उठाए हैं। आपने मेजॉरिटेरियन मोबिलाइजेशन की बात करी, आपने प्लूरलिज्म किस तरीके से अंडर थ्रेट है अक्रॉस साउथ एशिया, एथनिक माइनॉरिटीज़ किस तरह से अंडर थ्रेट हैं उसकी आपने बात करी। और कहीं ना कहीं जिस चर्न हम देख रहे हैं नॉट ओनली मतलब अक्रॉस साउथ एशिया, तो सर क्या आप इस चर्न को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने पैरेलल्स ड्रॉ करे हैं काफ़ी सारे अक्रॉस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो इस चर्न को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैंने जो इसमें बताने की कोशिश की कि भाई साउथ एशिया में इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं और उन सब में भी डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल सिस्टम है और कई चीज़ें हमसे अच्छी भी हैं, तो और हमें उनसे सीखना चाहिए। अपनी एरोगेंस में हम रहें कि हम सबसे बड़े हैं, हम तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, बहुत ज़रूर हम बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हैं। बहुत मेरी तो किताब का टाइटल ही अनडॉक्यूमेंटेड वंडर था, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। लेकिन अब जैसे नेपाल है, आपने एक सवाल पहले पूछा था इलेक्टोरल, हमारे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट सिस्टम ना, अपॉइंटमेंट सिस्टम हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ द डे या ये जो बड़ा डिफेक्टिव टाइप का कोलिजियम ये हो गया। उनका सिस्टम देखिए, उनका 2 टियर, एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो चुनती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ जस्टिस हैं और स्पीकर हैं। वो भी काफ़ी नहीं, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया, उसके बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल द पार्टीज, दे ग्रिल यू, देन इंटरव्यू उनका पब्लिक इंटरव्यू होता है कि साहब आपकी ये वो जो चीज़ें सवाल करते हैं उस सिस्टम से जो आते हैं ना, तो वो फिर टोटली बाई पार्टीजन होते हैं, विच इज़ वाई नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने पिछले जो 2 इलेक्शन कराए तो 2017 और 19 में बहुत क्रेडिबल इलेक्शन, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की वहाँ की। इसी तरह नेपाल में हमारे पास साइमल्टेनियस इलेक्शन भी होता है, हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की भाई डिमांड ही कर रहे हैं, उनका होता है और अच्छा हुआ। और इसी तरह बांग्लादेश में, श्रीलंका में ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि बस सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले वो जीत गया, लेकिन जर्मन मॉडल है मिक्स्ड सिस्टम जिसमें आधे फर्स्ट पास द पोस्ट, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितने आपकी पार्टी को वोट मिले उतनी सीटें आपको या उसके प्रोपोर्शन में मिलने चाहिए। अब देखिए, पहले मैंने जो ये किताब लिखी थी अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, पहले एडिशन में मैंने सारे सिस्टम डिस्क्राइब करके फर्स्ट पास द पोस्ट की तारीफ़ की थी, खूब तारीफ़ की थी कि ये बड़ा सिंपल है, 60 साल से चल रहा है वगैरह वगैरह। उस बार 2014 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद बाय द टाइम ये इलेक्शन ख़त्म हुआ मेरा तीसरा एडिशन का टाइम आ गया, तो मैंने उसको अपडेट किया। मैंने अपनी राय बदलनी पड़ी। क्यों बदलनी पड़ी? यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी को 20% वोट मिले, थर्ड लार्जेस्ट वोट शेयर, बट कितनी सीटें? ज़ीरो। 20% वोट शेयर एंड 0 सीट्स, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। 20% लोगों की आवाज़ तो पार्लियामेंट में पहुंची ही नहीं। तो अगर ये प्रोपोर्शनल सिस्टम कुछ होता तो कम से कम 5-7 सीटें भी उनको उस में मिलती तो कुछ तो आवाज़ पहुंचती। तो उसके बाद से मैं
इस तरह कहूँ कि हमें भी मिक्स सिस्टम ट्राई करना चाहिए। सर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की आपने बात करी हो, आपकी बुक में भी आपने भूटान नेपाल के एग्जांपल्स दिए हैं। बहुत आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिवली भी प्रूडेंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इतने की मतलब Financially बहुत पैसे फाइनेंशियली बचेंगे। प्रूडेंट है। तो आपका क्या ओपिनियन है वन देखिए, इस नेशन पे वन मैंने इलेक्शन? 20 आर्टिकल लिखे हैं, पहले दिन थे जब से ये हो रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि देखिए इसमें दोनों आर्गूमेंट हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसे आपने कहा, उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बहुत आसान है कि भाई वोटर भी वही है, जिस बूथ में जाके वोट देते हैं तीनों लेवल के वो भी वही हैं, जिसको इलेक्शन में लोग कराते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी वही है। तो बजाय आप 3 बार जाएं और 3 बार मशीन दबाएं, एक ही बार में 3 दबा के आ जाइए, काम आसान। तो इलेक्शन कमीशन के लिए तो बहुत अच्छा काम है कि एक बार 5 साल में इलेक्शन कराए और 5 साल हम आराम करके गोल्फ खेलें, लेकिन हमारी कन्वीनियंस तो कंसर्न नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी का जो बेसिक है फेडरल डेमोक्रेसी है। कोई सरकार, देखिए वाजपेयी सरकार 13 दिन में गिर गई थी। सपोज हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन शुरू कर दिए और एक सरकार 13 दिन में, क्या चलो 6 महीने में गिर गई, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन दोबारा कराएंगे, या ये जो सरकार गिर गई वो 4.5 साल वेट करेगी? ये से सवालों के जवाब तो कोई अभी तक आए नहीं। तो इसलिए इसकी जो लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको मैंने बार बार एम्फसाइज किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नहीं कहा था कि ये फ़ौरन हम कर देंगे, उस पर उन्होंने नेशनल डिबेट इनवाइट की थी। एंड टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने 10-11 साल में थोपा नहीं लोगों पे, डिबेट ही कराई, लेकिन डिबेट में तो वो यूनैनिमिटी आई नहीं। जिस दिन यूनैनिमिटी आ जाए कि सभी पार्टियां के यहाँ करा लो तो भाई करा लो, लेकिन वो तो आई नहीं, क्योंकि किसी की टर्म रिड्यूस करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 5 साल दिए हैं और आपको 3 साल में कह दिया जाए कि साहब आप घर जाओ क्योंकि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी, है ना। किसी की बढ़ानी पड़ेगी 5 साल के बियॉन्ड, वो भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इतने सीरियस हैं कि जब तक उनके ऊपर यूनैनिमिटी ना हो जाए इसको करना मुझे नहीं लगता संभव है। राइट सर, अभी आपने मेंशन भी किया था और आपकी बुक में भी लिखा है कि नेपाल ने कैसे इनमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर ली हैं हमसे पहले, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो क्या वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हम नेपाल जैसी कंट्री से सीख सकते हैं? मैंने दोनों बताया ना, एक तो हमारा जो सबसे बड़ी जो कोर इशू है, जो झगड़ा जो इंडिया में जो चलता रहा ना, कि अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो वो हमारे यहाँ तो बाई पार्टीजन ही सरकार लगा देती है, पहले से सिंगल ही लगा देती थी, अब जो कोलिजियम है वो भी बाई पार्टीजन तो नहीं है, सरकार जिसको चाहे लगा दे। उनके यहाँ मैंने बताया कि डबल सिस्टम है, 2 टियर सिस्टम है, बड़ा मजबूत है। फिर उनके यहाँ ये प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी 50% वो है। तीसरे उनकी जेंडर, औरतों को वो बड़ी उसमें इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे उनकी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में से एक को औरत होना ज़रूरी है। हाँ। मेयर और डिप्टी मेयर में से एक का को टिकट देना हर पार्टी के लिए लाजमी है, विद द रिजल्ट के वहाँ की पार्लियामेंट में और विद लेजिस्लेचर में हर लेवल पे, हमारे यहाँ पंचायत लेवल पे तो है 50%, लेकिन विधानसभा में तो 15% है, वो भी अब बेस्ट है पिछले 70 साल का 15%, पार्लियामेंट में 15%, उनके यहाँ 30, 35, 40% है। तो इसलिए छोटे छोटे कंट्रीज भले ही हों, लेकिन उनकी यहाँ भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, उनसे सीख सकते हैं। राइट। और सर अब जैसे हम ये कॉन्वर्जेशन के एंड तक आ रहे हैं, तो आपने 7 बुक्स लिखी हैं और उनमें से कई इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन इलेक्शन सिस्टम्स पर रही हैं, और आप इस डेमोक्रेसी, इस इलेक्शन सिस्टम के वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि आपकी भी 2 ईंटें इसमें लगी हैं, इतनी किताबें आपने लिखी हैं। तो इस सब के बाद जब वीडेम इंस्टीट्यूट्स ऐसे कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं अपनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे हम कहते हैं उसके बारे में, तो क्या लगता है? नहीं, ये सुन के तो बहुत बुरा लगता है। जब मैंने ये किताब लिखी थी ना, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उसको ख़त्म पे मैं पहुंचा था, तब मैंने ये फ्लॉड डेमोक्रेसी इंडिया के लिए पहली बार सुना। तो मुझे भी गुस्सा आया, जैसे हर इंडियन की तरह, कि ज़रूर दिस इज़ ए वेस्टर्न कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, और उन्होंने पैरामीटर्स ही ऐसे बनाए होंगे कि जिसमें इंडिया नीचे दिखाई दे। तो मुझे भी गुस्सा आया। लेकिन जब मैंने स्टडी किया कि हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हैं, तो बात तो वही है जो जिसके हम लोग प्रोटेस्ट रोज़ करते थे। जेंडर उस वक्त ज़माने में सिर्फ, जब सबसे पहले मैंने पढ़ा ये किताब के बाद, 7% MPs वुमेन होते थे, 7, जबकि 50% होने चाहिए।
इस तरह करप्शन है, 300 मिलियन 30 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, क्रिमिनल के बैकग्राउंड के कितने एमपीज हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन हो रही है। तो बजाय इसके कि हम अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें और अपनी सेल्फ करेक्शन करें, हम दूसरे को गाली देंगे इसने हमको ये बुरा कह दिया, ये तो गलत है ना। और ये तो, अपने और मैं बल्कि आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ साल पहले की बात है, 5-7 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक कंसर्न एक्सप्रेस किया कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बड़ी लो थी, कि यहाँ पे बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत से फॉरेनर्स यहाँ पे आके बिज़नेस, तो उन्होंने इसको अपना 1 पॉइंट प्रोग्राम बना लिया कि इसको हमने सुधारना है, और सारे सरकारी मशीनरी लग गई। 1 साल के अंदर अंदर 40 रैंक हम ऊपर चले गए। तो मिशन बना लीजिए, इसको भी मिशन बना लीजिए कि हम 45 नंबर और अब 53 नंबर पे हैं, हम 53 नंबर से 25 पे जाएंगे 1 साल में या 2 साल में। बना लो मिशन, करो कोशिश, उस पर ध्यान तो दो, बजाय इसके कि नहीं नहीं ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। जो तारीफ़ करे वो अच्छा, जो हमारे खराबी पॉइंट आउट करे वो हमारा दुश्मन। तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं। और ये आपके लिए पर्सनल है, जैसे आपने भी कहा था कि अगर कोई करंट सीईसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, एक तरह से आपको लगता है कि आप पे भी कुछ नहीं, मुझे क्योंकि ये जितना रिस्पेक्टेबल ये इंस्टीट्यूशन था और है अभी का, इवन डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी, द फैक्ट कि 1 करोड़ वोटर, सॉरी 1 बिलियन 100 करोड़ वोटर के लिए हम इलेक्शन करते हैं, प्रिसाइज डेट पे करते हैं, क्लॉक वर्क प्रिसिशन से करते हैं, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे इलेक्शन करते हैं, और वो नॉर्मली इनएफिशिएंट, लेजी एंड करप्ट कहलाने वाले ब्यूरोक्रेट हमारे अंडर में आके फर्स्ट रेट इलेक्शन आपको देते हैं। तो ये हमें वी हैव एवरी रीज़न टू बी प्राउड ऑफ दिस। लेकिन जो 2-4 क्वेश्चन मार्क अगर हैं तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क हैं तो क्यों हैं, उनको सुधारो। जी सर, क्वेश्चन मार्क्स की आपने बात करी, और जब भी इंडियन इलेक्शंस की बात होती है मनी एंड मसल पावर का जिक्र हमेशा होता है। मैंने नागालैंड में जब इलेक्शन कवर किया था तो वहाँ पर एक एमएलए कैंडिडेट के घर पे ओपनली बास्केट्स में नोटों की गड्डी और गन्स साथ में आ रही थी गाड़ियों में। तो ये किस तरह से कर्व किया जा सकता है? और इस पे एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी है कि आपने ये कहा था कि उसको स्ट्राइक डाउन करना इज़ द बिगेस्ट सर्विस टू डेमोक्रेसी, इफ़ आई एम कोटिंग यू करेक्टली। तो क्या आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम था, जो स्ट्राइक डाउन करना है एक सही? पहला सवाल क्या था आपका? मनी एंड मसल पावर। नहीं, मनी, इस पे मेरी इस किताब में एक पूरा चैप्टर मनी पावर पे है। मसल पावर अलग चीज़ है, मनी पावर पे है, और उसमें मैंने 40 मोडस ऑपरेंडी ऑफ अब्यूज ऑफ मनी लिखा है, किस तरह बेईमानियाँ होती हैं। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो डायरेक्टली ब्राइब दे दी वोटर को, जो आज भी दी जा रही है। चाय पिलाना भी, 1 प्याली चाय वोटर को पिलाना भी ब्राइब है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। तो किस तरह कि भाई शादी ब्याह हो रहा है, उसमें हमारे एक शादी कहीं हो रही, हमारा एक ऑब्जर्वर अंदर चला गया, दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने में, खूब शराब चल रही है, बिरयानी कबाब चल रहे, तो हमने दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने गए, वहाँ ना दूल्हा था ना दुल्हन थी। तो फेक शादी हो रही थी। अब वो हमने उसके बाद ये कह लिया कि सारे बैंक्वेट हॉल वगैरह की जो बुकिंग होती है, हम देखते हैं कि वो जाते हैं कि हम देखें कोई फेक शादी तो नहीं हो रही। पार्टीज ऑर्गेनाइज फेक कभी भी होती होगी। अब क्या होगा, एक किराए का दूल्हा और किराए की दुल्हन खड़े होंगे, उनके पास प्रिंटेड वेडिंग इनविटेशन भी होगा। तो इस किस्म की बेईमानियाँ जो ये एम्बुलेंस में पैसे जाता था, हमने कहा भाई एम्बुलेंस को भी चेक करना है, अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई बीमार है और वो मर गया या उसकी सीरियस हालत हो गई तो हमें तो लोग गाली देंगे। तो हमने कहा भैया बीच में ना रोकना एम्बुलेंस को, उसके हॉस्पिटल तक जाना, जब वो पेशेंट को उतार ले उसके बाद तलाशी लेना। इस किस्म के मोडस ऑपरेंडी हमने 40 बेईमानी के तरीके इसमें मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं, जो उस वक्त हमने देखे थे, अब और भी डिस्कवर हो गए होंगे। जी, आपकी किताबों की बात करें सर, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो सवाल मुझे आपका पॉपुलेशन पे जो काम है आपने किया है वो रिमार्केबल है। आपकी बुक में भी आपने द पॉपुलेशन मिथ में जिस तरीके से किया है, अब ये कॉन्वर्सेशन फिर से रीसर्फेस हो गई है कहीं ना कहीं ये डिबेट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट से बोला कि हम एक डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं। तो आपका क्योंकि इस पर इतनी महारत है, कैन मुस्लिम्स टेक ओवर हिंदूज, ये जो नैरेटिव है इसको आप वंस एंड फॉर ऑल, क्या आप
इस पर आपका नहीं, क्या हुआ? देखिए डेमोग्राफिक काउंसिल वगैरह बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर बनाए, लेकिन उसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, क्या उसका मैंडेट होगा, हमें पता नहीं, उसके बाद ही पता लगेगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि ऐसा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया जाए कि सारे मुसलमान बच्चे पैदा करना बंद करें और सारे हिंदू 10-10 बच्चे कर लें। ये तो हो नहीं सकता कानून। हाँ। सब पे लागू होगा तो बड़ी अच्छी बात है, कानून बनाइए। और जो इसमें मेरी किताब में निकल के आया कि नॉर्मल परसेप्शन था कि अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8-10 होते हैं, लेकिन मैंने सारा भारत सरकार के डेटा पे बेस 30 साल पहले भी द गैप वाज ओनली 1 चाइल्ड। यस, टोटल फर्टिलिटी रेट में एक बच्चे का डिफरेंस था 30 साल पहले। अब मुसलमान सबसे तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो 1 से घटते घटते 0.3 का गैप रह गया। और ग्रोथ रेट सबके ही कम हुए हैं, सबके कम हुए हैं, मुसलमान का सबसे ज़्यादा कम हुआ है, विद द विच इज़ वाई द गैप जो 1 का था वो भी कम होकर 0.3 आ गया। तो इसलिए, और हमने ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट पे हम पहुंच गए हैं। 2.1 इज द रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट का क्या मतलब होता है कि माँ बाप हैं 2, वो जब चले जाएंगे 2 बच्चे उनकी जगह आ जाएंगे, पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई। तो 0.1 यहाँ पे क्या कर रहा है? 0.1 इसलिए होता है कि कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं, उनको के बैलेंस के लिए 0.1 को रिप्लेसमेंट रेट मानते हैं। तो हम ऑलरेडी उस पर पहुँच चुके हैं। भारत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो इस दुनिया की सबसे अच्छी सक्सेस स्टोरी है। और उसी डेमोग्राफी को, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से बुरा भला कहते थे, उसी डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन ने, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमको मिला कि पूरी दुनिया पे हम छाए हुए। आज ही मैं एक वो वीडियो देख रहा था कि अगर इंग्लैंड से सारे, यूके से हिंदुस्तानी चले जाएं तो वो बताता था कि सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, सारे हर चीज़ बंद हो जाएगी, सब कुछ तो इंडियन कर रहे हैं। देखो 70 साल में 9.8 यानी 10% से बढ़ के 14% मुसलमान हो गए, यानी 60-65 साल में 4% बढ़े। 51% होने में 600 साल लगेंगे। और मैंने उसमें एक मैथमेटिकल मॉडल बनवाया। मैथमेटिकल मॉडलिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए साइंस में होती है। तो प्रोफेसर दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उनके अजय कुमार उनके कलीग, उन्होंने मिलके, मैंने उनको दिया कि 60 साल का डेटा देख के बताओ कि मुसलमान हिंदुओं से कब आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा भाईजान भूल जाइए, कभी भी नहीं हो ही सकता। तो 600 साल तो मैंने वैसे बताया। फिर मैंने कहा ये तो पिछले 60 साल का हो गया, आप अगले 1000 साल का बताइए। तो उन्होंने 1000 साल का ग्राफ बता दिया कि मुसलमान की लाइन यहाँ चल रही है, हिंदू की लाइन यहाँ चल रही है। तो और इसके बाद क्या कि जी मुसलमान ओवरटेक करने जा रहा है। अब इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की बातें की जाए, हम 5 हमारे 25, यानी मैं, मेरी 4 बीवियाँ और मेरे 25 बच्चे। भाई एक दिखा दो हिंदुस्तान में 4 बीवी और 25 बच्चे वाला, एक, ठीक है। और मैं तो बल्कि भागवत जी को ये किताब दी थी और उनसे मैंने कहा किताब ये हम 5 हमारे 25, ये बड़ा गलत वो है। सर, एज वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, एक सवाल जो कि व्हाट नेक्स्ट फॉर एसवाई कुरैशी। बहुत ऐसे केसेस आए हैं कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने पार्टीज़ ज्वाइन कर ली। MS गिल का नाम आता है, रामा देवी जो गवर्नर बनी कर्नाटका की। तो आप भी क्या इतने सालों में तो आपने नहीं की, लेकिन आपको ज़रूर कॉल्स आई होंगी कि कोई पार्टी ज्वाइन करने की, पॉलिटिक्स में जाने का कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर पाऊँ और किताब और अपने मीडिया के ज़रिए अपनी बात कह सकूं बिल्कुल खुल के, दिल से, ईमानदारी से, क्योंकि मैं टोटल इंटेग्रिटी से बोलने का मैं विश्वास रखता हूं। तो किसी को कोई आपत्ति हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं तो अपनी दिल से अपनी बात कहता हूं। पर आपको कभी कॉल्स आई हैं किसी पार्टी से कि आप हमें ज्वाइन करिए? मुझे एक बार एक दफ़ा आई थी कि साहब आप कहीं का भी टिकट ले लीजिए। उसने कहा भैया मुझे माफ़ करो, मुझे पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे बस का नहीं है। मुझे मालूम है मेरी ज़मानत जब्त हो जाती, क्योंकि मिस्टर सेशन ने इलेक्शन लड़ लिया था। वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन LK आडवाणी साहब के खिलाफ उन्होंने अहमदाबाद से इलेक्शन लड़ लिया, ज़मानत जब्त हो गई। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लिया। तो इसलिए मुझ में ये खुशफहमी कि जब मैं बड़ा अच्छा CEC हूँ, बड़ा पॉपुलर CEC हूँ, ये कभी दिमाग में नहीं। तो किस पार्टी से कॉल आई है नहीं बताएंगे? नहीं कोई फायदा नहीं। चलिए सर, अब एज वी एंड हमें हमने बताया वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थी वो। अच्छा, ये चलिए, बता ये सकता हूं। clarify किससे नहीं आई ये बताना ज़रूरी हो जाता है। नहीं, क्योंकि इससे पहले जिक्र आया ना कि जी कांग्रेस ने आपको लगाया था, तो जरूर, क्योंकि गिल साहब को तो कांग्रेस ने लगा के कांग्रेस ने टिकट दिया। मैं समझता हूँ कि वो उसका जवाब देते देते मैं भी थक गया
क्योंकि वाकई वो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बार नहीं है, हाँ रिटायरमेंट कानून में कोई बार नहीं है, और वो कहते भी थे कि मैं रिटायरमेंट के 3 साल बाद MP बना हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी फैट के लोग उंगली उठाते हैं। आइडियली मैंने तो बल्कि ऑफिशियली किसी स्टेटमेंट में बोला है कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी लगा दो कि हम पोस्ट रिटायरमेंट नहीं लेंगे, लेकिन हम फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने लिविंग के लिए पकौड़े बेचता हुआ दिखाई दे, वो तो अच्छा वो नहीं अच्छा लगेगा नहीं ना। लगेगा। हमारी पेंशन जो है नॉर्मली सैलरी की आधी पेंशन होती है, वो हमको लास्ट पे जो है वो फुल पेंशन दे दो, और हमें रहने के लिए एक 2 बेडरूम का क्वार्टर दे दो, और आगे पाबंदी लगा दो कि कोई किसी किस्म की आप न प्राइवेट न सरकारी जॉब लेंगे। तो आपके हिसाब से फॉर्मर CECs को बाहर मैं तो इस होना राय चाहिए? कहूँ कि कर देना चाहिए, लेकिन खास साथ तो उनको ये कि डिग्निटी से रह सकें, उनको एक मकान उनकी स्ट्रेचर के मुताबिक, और उनको फुल सैलरी जो लास्ट मिली थी बजाय उसको आधा करने के, वो है भी कितनी, तो उस ज़माने में 45,000 होती थी जिस वक्त मैंने ये बोला, अब वो 1 लाख हो गई। 1 लाख रुपए एक आदमी को एक साल में एक ही तो CEC रिटायर होता है, 1 लाख रुपए दे के आपने उसकी ज़िंदगी भर की, और उसकी जो न्यूट्रलिटी इंश्योर कर ली, ज़रा भी टेम्पटेशन उसको हो सकती थी, जैसे कि जेटली साहब ने कहा था कि कुछ आजकल के जजेस कुछ ऐसे हैं कि आज के फैसले फ्यूचर असाइनमेंट को जिम्मे, जैसे वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली केस हुआ कि वो देखो ना कैसी जजमेंट और किस किस्म की बेहुदा बोलते थे वो साहब, और TMC फौरन जन। अगले दिन पार्टी ज्वाइन करके शायद बन भी गए कुछ। हाँ और चुनाव लड़ा उन्होंने हाँ चुनाव लड़ा तो वो अब पॉलिटिशियन अदालत की बेंच पे बैठा हुआ हो तो वो उससे क्या इंसाफ एक्सपेक्ट करेंगे। राइट सर, एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे। आप इस देश के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ब्यूरोक्रेट्स में से हैं, और ब्यूरोक्रेसी एंटर करना लाखों इंडियंस के लिए एक ख्वाब है। कितने लाखों लोग हर साल UPSC एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक ऑफ टॉपिक जाना चाहती हूँ कि UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक आपकी क्या एडवाइस रहती है? वो कुछ चेंज लाने के लिए UPSC ज्वाइन करना चाहते हैं, पर ये तरह के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि इवेंचुअली हर ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिशियंस की सुननी पड़ती है, या कहीं से उनको कॉल्स आते हैं, जैसे हमने कोट अनकोट कहा। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे UPSC एस्पिरेंट्स के ये लिए? देखिए, एक तो ये बड़े पुरानी डिबेट है कि हम जब एकेडमी गए थे 1971 में, वहाँ पे भी यही था कि साहब नेताओं से जो कन्फ्लिक्ट होती है, मैं उस राय का नहीं था भाई, नेता और ब्यूरोक्रेट में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का स्कोप नहीं है। 90% तो बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि हमें भी जनता का वेलफेयर चाहिए, उसको भी चाहिए। ओनली प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं पॉपुलैरिटी कंटेस्ट में आ जाऊँ, MLA को ताली बजवानी है, वोट चाहिए, मुझे तो एज कलेक्टर कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए MLA को साथ लेके चलूँ कि भाई मेरा उद्घाटन तुम कर दो, उसकी ताली बज जाएगी, उसको वोट मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो पॉलिटिकली 90% तो मैं इस राय कहूँ कि कोई क्लैश है नहीं। तो जो 10% है उसको हमने क्लेवरली और बहुत सारी चीज़ें निगोशिएशन से बता के समझा के, आई बिलीव इन कम्युनिकेशन। कई बार उसको हुआ कि कुरैशी साहब वो फला हमारे सरपंच को सस्पेंड कर दिया, तो मैंने कहा साहब मैं देख के बताऊंगा। तो हमारे एक चिरंजीव लाल शर्मा थे सोनीपत में, देख के बताऊंगा। मैंने देख के बताया कि मैंने कहा सर उसके खिलाफ तो बड़ी शिकायतें थी, इसी करप्शन। अच्छा तो 2 जूते मारो, एक मेरी तरफ से भी। ठीक है, सिफारिश भी की थी, लेकिन हमने कहा कि साहब मैं इंक्वायरी करूंगा, कब वापस आके आपको सब बताऊंगा। तो 50% नेता तो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए जहाँ क्लैश का वो पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे भी निगोशिएशन से समझाया जा सकता है। बस सबसे पहले तो कंपटीशन उनको ना समझे कि आप पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, आप चुप बिहाइंड द सीन फेसलेसली अपने काम करना चाहिए। ये पर मुझे ये बदकिस्मती ज़रूर है कि सर्विसेज में करप्शन के केसेस अब बहुत आने लगे हैं। हमारा ज़माना जब हम 30-50 साल पहले ज्वाइन किया था, मुश्किल से 1-2%, 3% होते थे, सब उस पर उंगली उठाते थे कि देखो ये आदमी बेईमान है। अब प्रोपोर्शन उसका काफ़ी बदल गया है, ये अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ सिविल सर्विस से अच्छा कोई करियर नहीं। 10 लाख लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन से और आते हैं सिर्फ 1000 सारी सर्विस को मिला के, तो वो होते तो क्रीम है। लेकिन कितनी जल्दी वो आज के माहौल में ढल जाएं और करप्शन पे आ जाएं, ये दुख की बात है। लेकिन बहुत से यंग ऑफिसर्स हैं, इतना मिशनरी काम कर रहे हैं, उनकी की स्टोरी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है।
और जो इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि भाई देखिए 10 लाख में से 100 लोग चुन के आएंगे, तो ब्रेनी तो वो होंगे ही होंगे। फॉर श्योर। पर ये सब क्लैश के एग्जाम्पल आते हैं। अभी रिसेंटली आया कि अजीत पवार ने किस तरह एक IAS ऑफिसर को फ़ोन करके बोला कि ये एक्शन बंद करो, जबकि वो इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ एक्शन ले रही थी। तो इन सब वीडियोस को देख के हमारे मन में भी सवाल उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स इवेंचुअली पॉलिटिशियंस के पपेट्स बनने पर मजबूर किए जाते नहीं, हैं? लेकिन आपने जो कहानी बताया उसमें उसी ब्यूरोक्रेट ने उनकी मुंह तोड़ जवाब भी तो दे दिया। हाँ बिल्कुल, है ना? उसी वीडियो तो में दिया। उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि देखिए ये कोशिश पॉलिटिशियन की तो हमेशा होगी, लेकिन उसको हैंडल करना और अपनी बैकबोन दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, पर ट्रांसफ़र को पनिशमेंट समझना बंद कर दीजिए, तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो जाएगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स डिमोरलाइज ना हो, जो डिमोरलाइज ना हो। देखिए ये कितनी मिसालें हैं कि हर 6 महीने में एक तो ऐसी आ जाती है कि कितना यंग कलेक्टर और बिल्कुल यंग बॉय गर्ल जो अभी 30-35 के ही हैं, वो जिस तरह लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए और ठीक बात के लिए, ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज हाईलाइट होनी चाहिए। जी। और सर यूपीएससी पर ही एक तरह से बोला जाता है कि आजकल ये नेशनल पास टाइम बन गया है, नेशनल में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बन गया, क्योंकि लाखों लोग कोशिश करते हैं रिसेंटली सालों तक। अभी इस बार भी जो टॉपर थी शक्ति दुबे, उनका 5th अटेम्प्ट था और उसमें वो टॉपर निकली। तो यशवर्धन आज़ाद एक्स IPS ऑफिसर, उन्होंने कहा था कि एक लिमिट होनी चाहिए, एक इंसान को 2 बार ही अटेम्प्ट करने का मौका देना चाहिए और एज लिमिट होनी चाहिए 25। डू यू अग्री विद दैट? मैं तो इस राय का ही हूँ, क्योंकि हमारे वक्त में 21 से 24 होता था। 21 से छोटे नहीं हो सकते, 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और 3 अटेम्प्ट होती थी। तो हम भी आ गए, हम तो पहले अटेम्प्ट में आ गए थे 22-23 साल की उम्र में। तो ये 35-35 साल तक, और ये मैं फ्रैंकली इसके ख़िलाफ़ हूँ, 5 बार फेल होने के बाद 6ठी बार में आप आगे जाएँ, टॉपर भी बन जाएँ, लेकिन 5 बार फेल होना भी तो आपके ऊपर एक मोहर है। तो इसलिए क्या आप उसके पीछे लगे रहे, वो मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ कि ये जो लिमिट हटा दी गई, बढ़ा दी गई, 10-10 9 लिमिट, 10-10 अटैम्प्ट वगैरह, ये बस गोया सर्विस आपके पीछे पड़ी हुई है कि मुझे आपको लेके रहना पड़ेगा, आप भाग रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके आगे चिपकी जाना है मुझे। ये क्या चीज़ है? पहले भी तो सिविल सर्वेंट आते थे और ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता था उस ज़माने का, 3 साल में आते थे। और अभी भी मैंने देखा है, मैं कुछ साल बाइजू के लिए 4-5 साल मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मुझे बुलाते थे, तो हमने देखा जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी यूनिवर्सिटी के 21 और 22 साल के बिल्कुल BA करके आते थे, वो सबसे ब्राइट उसमें से निकलते, तो और IAS में आ भी गए उनमें से कई। तो क्योंकि जो अगर आप में जो टैलेंट है वो पहले ही साल और दूसरे साल में अगर नहीं निकल के आया 15 साल के बाद और कोशिश के बावजूद, तो दैट समथिंग टू बी थॉट अबाउट। और ये डिमोरलाइजिंग नहीं है, वो साल आप और कहीं लगा सकते हैं कुछ और स्किल्स में। हमने देखा कि एक साहब हमारे इंटरव्यू में आया कि 3 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के वो पेशे, हमने कहा भाई ये क्या, उसके पीछे क्या निकला? EWS जो है ना, बहुत बड़ा एक रैकेट है। इकोनॉमी 3 लाख रुपए की सैलरी तो EWS नहीं होते, तो उन्होंने 3 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी इस उसमें कि ताकि वो EWS में आ जाए, EWS के कोटा के जरिए उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए, इसी किस्म के। तो क्योंकि EWS के जो फ्लॉज हैं, इसको खास तौर से एग्जाम, क्योंकि शेड्यूल कास्ट है, उसमें भी कभी कभी लोग बोगस दे देते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट प्रूवेबल है, पूजा खेड़कर का जैसे केस है ना, OBC प्रूवेबल है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो नौकरी छोड़ दी तो आप बन गए, तो आप EWS हो गए। उसमें डिस्क्रिपेंसीज काफ़ी देखने को बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो खराबियां हैं सिस्टम की, उसको सुधारते रहना, उनके ऊपर विचार करते रहना तो ज़रूरी चीज़ है जी। हालांकि ये सुन के ये EWS वाले मुझको बुरा वाला कहेंगे, लेकिन जो मैं समझता हूँ ठीक वो बोल रहा हूँ। जी सर, आपने हमारे सारे सवालों के बहुत बेबाकी से और बहुत इन डेप्थ आपने जवाब दिए। एज वी एंड सर, एक छोटा सा रैपिड फायर सेगमेंट आपके साथ करना चाहेंगे। क्विक क्वेश्चंस और एक वर्ड या एक लाइन में आप उसके हमें जवाब दें। अगर माय फर्स्ट क्वेश्चन, 1 word or 1 sentence for EVM doubters. आई थिंक उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि EVM पे कितनी बार लिखा जा चुका है कि EVM को डाउट नहीं करना चाहिए। जी। 1 line message for the current CEC Gyanesh Kumar. I have no message. He is a very bright man, brighter than me. So in fact, if he has some message for me, I'll be happy to receive that. 1 Indian politician that you admire or respect.
Dr. Manmohan Singh and Pandit Nehru before that. One election reform that India needs urgently, something that you regret that you didn't bring earlier. Well, the electoral reforms are not in the hands of election commission. Basically, they are matter of legislation. लेकिन जो system of appointment है और दूसरा expenditure, there should be a cap on expenditure by political parties. So currently there's a cap. एक कैंडिडेट एमपी के कैंडिडेट 95 लाख खर्च करता है, उसकी पार्टी उसके ऊपर 20 करोड़ खर्च करती है. तो ये तो इट बिकम्स मॉकरी ऑफ एक्सपेंडिचर सीलिंग. तो पॉलिटिकल पार्टी पे भी सीलिंग होनी चाहिए, जैसे कि यूके में है और कई कंट्रीज में. Should India stop holding general elections in peak summer? ऑफ कोर्स यू नो जब इलेक्शन डिसाइड होते हैं हम वेदर कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर, बच्चों के एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें देखते हैं. और जुलाई तक इलेक्शन का करना ये अवॉइडेबल है. फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर करें तो मार्च में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन वो होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं. मौसम का ख्याल बहुत ज़रूरी चीज़ है. जी. Ji. Can you predict one big change that Indian democracy will see before 2029, before the next elections? Well, I'm looking forward to reservation for women. Yes. जो पार्लियामेंट और विधानसभा में है 2029 में शायद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी. Right. आई थिंक दैट विल बी ए वेरी बिग, वेरी गुड स्टेप एंड लॉन्ग ओवरड्यू. जी. First thing that comes to your mind when I say these things, एक वर्ड में आप जवाब दें सर. One nation, one election. Debatable. Prime Minister Narendra Modi. Great man, but he needs to be a little moderate in certain policies of his, particularly minorities. Rahul Gandhi. An honest man, but inexperienced. Electoral bonds. They were definitely, I don't want to use the strong word fraud, but they were definitely questionable, and I'm glad Supreme Court has declared them unconstitutional. Exit polls. Joke. Vote chori, the whole controversy that's going on right now. Well, the vote chori may or may not be an appropriate word, but it needs to be examined because manipulation of electoral roll, the fact that an FIR has been filed in Karnataka shows that things can go wrong. And in the computer age, जिस तरह लोगों ने manipulate करके कहाँ से किया, कैसे किया, there's a lot of scandal there that has to come out as quickly as possible. Dr. S. Y. Qureshi, thanks very much for your time and always a pleasure speaking to you. Sir. Thank you. Thank you. My Thank you pleasure. so much. Thank you. Thank My you. pleasure.